What is the name of resource person, ma'am? Dr. Mahesh Resource Jivani from person? Saurashtra University, Rajkot. Okay, Saurashtra. Okay. Yes. Yes, yes. That's what I thought. Okay, पहचान के नहीं है. Fine. When I'll get his number from you, it Yes, sir. looks like Yes. very Definitely, interesting. I'll share. So, yes, yes, definitely. Share, yes. So, thank you so much, ma'am. And dear teachers, yes, the next topic, NEP has got like 4 or 5 important pillars like multidisciplinary and interdisciplinary, social impact. Yesterday, we have seen impact of education on society and society's impact on education. Then it is interdisciplinary, multiple entry exit, other focus area like digital. So, उसमें से एक सबसे important है research and development. And into research and development also, there are like so many points. If you say R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवढं जरी म्हटलं तर त्याच्यामध्ये प्रचंड आहे और एज्युकेशन जैसा हमने देखा फोर्थ रिवॉल्यूशन है सो फोर्थ रिवॉल्यूशन टॉक्स अबाउट इनोवेशन राइट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन so innovation has become an integral part of it. Earlier teacher used to say कि आमचं काय यूजी कॉलेज आहे हमको तुम रिसर्च का मत सिखाओ नहीं research and innovation has to be an integral part of your teaching learning your research your whatever you are doing you have to have innovative in your approach. So research and development has been given very lot of importance, the correct weightage, then the grants required for research and development, then the opportunities for collaborate and network, then multiple interdisciplinary courses together giving open elective around 170 क्रेडिट में से 45 क्रेडिट हमको आज बियॉन्ड वो देना है सो दैट मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर हम कुछ तो भी रिसर्च करें. We will find out some innovations. So all these aspects we will discuss, and out of that also I am focusing on only out of like 10 objects I am focusing on 3 4 important topics. I am sharing my presentation now, just a second. So fine, is it visible now? Yes, sir. So is it visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, yes, yes. So now, for continuing an effective research and development activities in an institution, I always find that it has to be a collaborative one. एक डिपार्टमेंट में बैठ के फिजिक्स का टीचर कुछ रिसर्च करेगा वो हो ही नहीं सकता. एक डिपार्टमेंट कोई मैकेनिकल का, कोई इलेक्ट्रिकल का, कोई हिस्ट्री का. इट शुड नॉट बी द केस बिकॉज इट विल नेवर गिव यू the actual solution or true solution or most next generation solution to your problems, because every problem has got its solution into various discipline. अब मेरा फिजिक्स का आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर फॉर लास्ट 30 ईयर. सो मेरे को फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आता है ना, सो फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई ऑलवेज फाइंड अरे याच्यात तर मॅथ्स लागत आहे, अरे इसमें तो थोड़ा मेरे को बॉटनी जूलॉजी का भी काम है, इसमें तो मेरे को बायोटेक्नोलॉजी का काम है, इसमें मेरे को थोड़ा सा मैकेनिकल वालों से हेल्प लेनी पड़ेगी, मला याच्यात थोडंसं इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग लगता है, एआई डेटा साइंस लगता है, मेरे को तो डेटा मतलब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लग रहा है, डीआईपी के मेरे पास बहुत मैप्स आ गए हैं, उसको इमेज प्रोसेस करने के लिए मेरे को नहीं आता. म्हणजे द पॉइंट इज whatever question and whatever problem statement you arrive which is a useful one, rather it is useful one. If it is useful one, then its reply, its solution is always interdisciplinary. That we really have to accept it. Otherwise, if we continue into working into domain, it will not happen. So collaborate, network, and innovate, building connections for cutting edge R&D. Every day there are different domains, different fields, and everybody is coming up with lot of R&D and lot of networking, lot of collaboration. So best solution is to collaborate, network, and together innovate. And that is the approach for NEP also, that is multidisciplinary and interdisciplinary education approach. Yesterday, this slide I have shown yesterday, importance is education, fundamental education, school or college education, higher education must have what it should have. It must produce innovation. एंड दैट वर्ड इनोवेशन को मैं आगे लेके चल रहा हूं कि अगर मेरे को इनोवेशन करना है तो इट इज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर इंटरडिसिप्लिनरी. एंड इंटरडिसिप्लिनरी में मेरे को दूसरा सब्जेक्ट सीखने की जरूरत नहीं है. आई हैव ओनली वांट टू कोलैबोरेट विद समवन.
मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट टाइप का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट करना है, तो मेरे को मैथ्स था ग्रेजुएशन में, पर मैं उतना एक्सपर्ट नहीं, क्योंकि आई कंटिन्यूड फॉर फिजिक्स फॉर लास्ट 30 years. सो देन उतना मैथमेटिकल इक्वेशन का प्रोग्रेशन निकालना, उसका उसका मॉडल बनाना, मॉडल की रिलायबिलिटी निकालना, ये सब एक्सपर्टीज मेरे में नहीं है. But there are, I know 50 maths teachers and mechanical and other OR teachers who can do amazingly well, foolproof within 2 hours. उनको डेटा दे दो, कांस्टेंट दे दो, वेरिएबल्स दे दो, ये दो, तो वो निकाल के दे देगा. तो व्हाई नॉट टू कोलैबोरेट विद अ मैथ्स पर्सन. सो द पॉइंट इज, मेरे को झुकना पड़ता है, मेरे को बताना पड़ता है की मला हे येत नाही. आणि 90% लोगों को ये बोलते ही नहीं आता कि मला हे येत नाही, ते येत नाही. मेरे को तो आप पूछो क्या नहीं आता, तो मैं बोलूंगा फिजिक्स में आई कैन टेल यू 25 टॉपिक्स. क्वांटम फिजिक्स, करंट ट्रेंड्स इन क्वांटम फिजिक्स पढ़ा ही नहीं मैंने कभी, और उसमें स्टैटिस्टिकल डायनेमिक्स से कुछ अभी वो एमएससी में पढ़ा था, उसके बाद कभी पढ़ा नहीं. तो आई कैन वाउच फॉर, लाइक की मला 100 टॉपिक है फिजिक्स के, बाकी सब्जेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. फिजिक्स में मैंने एमएससी पीएचडी किया हुआ है, और 13 पीएचडी अवार्ड हो गए मेरे अंडर, और 30 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है. स्टिल आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट देयर कैन बी 50 टॉपिक्स जो मेरे फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को नहीं आते होंगे. बट मेरे को कोलैबोरेट करना आता है, मेरे को पूछने में शर्म नहीं आती. मैं किसी भी, मेरे से जूनियर, 25 वर्ष से जूनियर एखादा टीचर है माझ्या, उसके बाद जाके मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि उसने पीएचडी आज किया है, 2024 में किया है, 25 में किया है, और मैंने पीएचडी 94 में किया है. सो ऑब्वियसली आई विल बी, यू नो आई मे साउंड आउटडेटेड समटाइम्स. सो लर्न टू कोलैबोरेट, एंड कोलैबोरेशन ये एक स्किल है. अगर ये जिसने सीख लिया ना, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रू सेंस में हो जाता. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओनली रिसर्च, रिसर्च ही कर रहे हो, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा. पॉइंट क्या आहे, आर एन डी असं आर एन डी बोलने से थोडी होतं. आर एन डी म्हणतोय पण होतो फक्त रिसर्च आहे. पॉइंट वो है कि सिर्फ रिसर्च करने से क्या फायदा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज लीडिंग टू सर्टन important contribution to that domain knowledge, whether it is leading to a useful product, process, method, इक्विपमेंट, गैजेट, विजेट, ऐप क्या बना रहा है, मतलब हमारा इनोवेशन, हमारा रिसर्च होने के बाद वो किस चीज को एंडोर्स कर रहा है, क्या बना क्या रहे हम लोग, वो बताते आना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च डजंट लीड टू development, true sense. Research leads to PhD, research leads to patent, research leads to research papers, research lead to PhD and promotion as a professor. ये सब रिसर्च का असली आउटपुट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट्स है. मैंने रिसर्च किया इसलिए मेरे को पीएचडी मिली, इसलिए मैं प्रोफेसर बन गया, ये मेरा बाय प्रोडक्ट है. रिसर्च का है केला, रिसर्च किया ना आपने, तो इट शुड बी यूजफुल फॉर सोसाइटी एंड इंडस्ट्री. विच डोमेन ऑफ इंडस्ट्री इट इज बीइंग यूज नाउ ऑनवर्ड सिंस यू हैव डन रिसर्च. सो वो नहीं रहेगा बहुत ना टाइम. तो मेजॉरिटी टाइम आई हैव सीन दैट द प्रॉब्लम विद दोज सच रिसर्चेस इज दे आर इनटू सिंगल डोमेन. वो सब मिलके नहीं किया गया है, उसमें मदद नहीं की गई, उसमें कोलैबोरेशन नहीं किया गया. दैट्स व्हाई. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू that please be open and follow, develop that expertise to collaborate. और उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, learn to collaborate, talk and discuss and present with the people who are good at things you are not good at. Somebody is very good. अब बीकॉम पार्टनरच्या मुलाला सुद्धा माझ्यापेक्षा अकाउंटन्सी चांगलं येत असेल, तो मेरे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मैं 35 साल एक्सपीरियंस और मैं पीएचडी और मैं प्रोफेसर, कोई मतलब नहीं. मेरे को बेसिक सेकंड ईयर का जो इकोनॉमिक्स है, सेकंड ईयर का सिंपल टैली है, टैलीचं करंट वर्जन मला काही समजत नाही, उघडता येत नाही, तो मैं क्या उसमें सोल्यूशन लाऊंगा. बट टैली वाले को मैं दोस्त बना सकता हूँ. आई कैन शेक हैंड्स विथ हिम, आई कैन कोलैबोरेट एंड ही कैन गेट डन माय इकोनॉमिक्स पोर्शन ऑफ माय टॉपिक इन फिजिक्स. लर्न टू कोलैबोरेट, शेयरिंग योर एक्सपर्टीज विद द पीपल हु आर वेरी डिफरेंट देन यू. फिजिक्स से कोलैबोरेशन तो करना भी नहीं. अभी नागपुर यूनिवर्सिटी ने भी और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने ये बंद भी कर दिया कि गाइड को गाइड एकाच विषयाची. क्यों करना भाई. वो तो एक जनरली मेरे को लग रहा है तो मदद कर सकता है, लेकिन उसमें को गाइड, को सुपरवाइजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है. को सुपरवाइजर, को गाइड उसलिए होता है जिसके लिए वो डोमेन का नॉलेज अपने को है ही नहीं. सो फिजिक्स का को गाइड केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री का को गाइड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, बायोटेक का को गाइड एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है. सो interdisciplinary collaborations. So people who are good at things you are not good at, you should be comfortable. Basically research has got a lot of it is very long. I have shared some 8-10 points, but research has got huge benefits.
ट्रिमेंडस मॉनेटरी बेनिफिट्स, वो तो मैं बिसाइड्स बोल रहा हूँ, बिसाइड्स ट्रिमेंडस मॉनेटरी बेनिफिट्स, इट हेल्प्स यू टू अपग्रेड क्वालिफिकेशन, गिव्स यू नेम एंड फेम, अपॉर्चुनिटी टू विजिट फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड लैब्स, चांस टू इनोवेट, क्रिएट, डिस्कवर और इन्वेंट, a reputation in the field, immense satisfaction, and chance to oblige many for their career. हे सगळं मिळू शकतं. और ये किसको नहीं चाहिए यार? एक टीचिंग करियर में all these things can be fetched only and only if you are doing a useful research, a collaborative venture, a something which has been endorsed by other people also. You know, if I am doing something in domain of botany, and if I show it to zoology, or if I show it to environmental guy, or if I'm showing it to biochemistry or microbiology person, he should endorse. Wow, what a work you have done. Amazing. I will share this on my social media. This will be useful to so many. Is it happening or not? ये अगर नहीं हुआ है तो आपका रिसर्च सही नहीं है. नेम एंड फेम, अपग्रेड क्वालिफिकेशन तो फंडामेंटल है, पीएचडी मिलेगा, पीएचडी हो गया तो पोस्ट डॉक, पोस्ट डॉक होगा तो यू विल स्टार्ट गाइडिंग, यू विल बिकम सुपरवाइजर फॉर 1 2 3 25, ऑल दैट थिंग. नेम एंड फेम अपने आप आएगा क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. देन अपॉर्चुनिटी टू विजिट फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यस, स्टिल देयर इज अ सी चेंज. इसका प्रचंड फर्क है. द काइंड ऑफ अप्रोच, the kind of equipment they have, the kind of infrastructure they have, the kind of thought process they have about research, and what we have in India, tremendous farak hai. Unless you visit and understand and work with them, you will never understand the kind of change and difference in the quality of the work, the utilization of the work, the outcome based work, the net output of that work. ये फर्क क्या है? This you may not find it out. Opportunity to just so everybody must visit some world class universities. Yes, of course, our own IITs, NITs, and all research laboratories. CSIR की 25 labs है इंडिया में, नागपुर में एक है, नीरी है. Go and see the kind of culture of the research which they are undertaking. Go and see to National Physical Laboratory, National Chemical Laboratory, Tata Institute of Social Science. प्रचंड है ना फर्क. टीस के साथ में 4 साल काम किया हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस. आई एम अ फिजिसिस्ट एंड वी आर एन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट वी आर वर्किंग विद सोशल साइंस कॉलेज. Why? Because we need them. There are 58 courses in Tata Institute of Social Science. MH degree देता है, MA in 58 subjects. And many of the subjects, once you just postgraduate from there, the current package starts with 35 lakhs. 35 लाख, 38 लाख, 40 लाख बच्चे को पैकेज है. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया है, एचआर में किया है, आपने कुछ विमेन एम्पावरमेंट में किया है, एनवायरमेंटल में एमए किया है, वहां से एमए करने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, आई एम टॉकिंग अबाउट, चेंबूर में, तो वो इतना ज्यादा जंप है क्योंकि हर एक चीज इंटरडिसिप्लिनरी वहां पे, हर एक चीज में रिसर्च हो रहा है. एमए भी कर रहा तो उसके पास कम से कम 10 पेपर हो जाते एमए के ड्यूरिंग. हमारे यहाँ नहीं होते. तो फर्क है. तो ऐसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में विजिट करना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, ट्रैवल के लिए लगेगा, रहने खाने के लिए लगेगा. वो कहाँ से आएगा? वो रिसर्च फंडिंग से हम we can get it availed. So chance to innovate, create, discover and invent. Yes. कहाँ मिलेगा चांस मेरे को? इनोवेशन है, ये मेरे नाम का, ये माय पेटेंट एंड दिस इज कमर्शियलाइज्ड एंड पीपल आर गेटिंग दिस एंड दैट. नहीं कर रहे हम. रेपुटेशन इन द फील्ड, immense satisfaction. ये तो सही में मिलता है. Like I have been into research for last so many years. You get true satisfaction once something has been remarkable registered somewhere. Then chance to oblige many for their career. Yeah, like I have guided so many students, and those students are have like they always give credit that sir आपके कारण हो गया, आपने पीएचडी करा दिया टाइम पे, राइट टाइम, अच्छी से गाइड किया. So my guy salary got doubled. I was just assistant professor, now I am associate, or now I am professor. I have been taken over the principal. My salary has become 3 times. Chance to oblige many for their career is another important. Now, the most important point: approach for deciding research or innovation topic. अप्रोच पे ही मेरे को ऑब्जेक्शन है. अप्रोच होना चाहिए ना, एक मेरे को पीएचडी करना है, या मेरे को पोस्ट डॉक करना है, या मेरे को स्कीम डालना है. इनोवेशन रिसर्च कहाँ कहाँ होता है? या तो आपको पीएचडी करना है, या आपको पीएचडी गाइड करना है, या आपको पोस्ट डॉक का करना है, या आपको कोई इंडस्ट्री बेस्ड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट करना है, या आपको कोई रिसर्च स्कीम के लिए फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट लिखना है. ये सब में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसाइडिंग द रिसर्च टास्क.
काय करायचं हे जोपर्यंत प्रॉब्लेम स्टेटमेंट जोपर्यंत काही कॉइन होत नहीं, तब तक मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ. तो आमतौर पे क्या हो जाता है, अ टिपिकल वे ऑफ डूइंग दिस इज लिटरेचर रिव्यू बेस्ड. मेरे को कुछ करना है, काही करायचं आहे म्हणजे काय करायचं, लिटरेचर रिव्यू बेस्ड. एक कीवर्ड होता है, मेरे पास भी था. आई डिड एमएससी मेरा 91 का है. तो वो क्या होता था कि एक टॉपिक ढूंढो, कोई भी गाइड ढूंढो, ये हो गया, फाइनल हो गया, देन देयर विल बी कीवर्ड्स. लाइक फॉर मी, आई रिमेंबर it was magnetic materials. Then into magnetic materials, ferrites, and into those ferrites, then I was more concentrating on nano size ferrites, and into that nano size ferrites, I was more concentrating on ferrites containing chromium, iron, copper, and nickel. So I had a choice of elements also. So ये सारे keywords के मेरे hints हो गए, and then I have framed some keywords, and I started literature survey. But that time it was physical, it was not Google. राइट. सो वो फिजिकल करता था, मैं बिल्कुल जाके बॉम्बे बैठता था, नागपुर में उतनी लाइब्रेरीज में भी मजा नहीं आता था. आई यूज टू गो टू लाइब्रेरीज इन मुंबई, पुणे एंड हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ऐसा कई जगह में सिर्फ लाइब्रेरी ढूंढने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आई यूज टू ट्रैवल दोस डेज. सो नाउ इट इज ऑनलाइन, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल वेरी इजीली. तो पहला काम क्या हो जाता था, रिसर्च करना है मतलब क्या करना है, लिटरेचर सर्वे. दैट इज नॉट द ओनली थिंग. लिटरेचर सर्वे सबको करना पड़ेगा, बट दैट शुड नॉट बी द फंडामेंटल अप्रोच ऑफ डूइंग दैट. लिटरेचर रिव्यू बेस्ड PhD नहीं, उसमें 4 चीजें हैं, उसमें से एक लिटरेचर रिव्यू. सेकंड एक इंपॉर्टेंट टिपिकल लोग करते हैं, वो है बेस्ड ऑन ऑफशूट ऑफ एन एग्जीक्यूटेड रिसर्च. Means you have gone to certain PhD supervisor, you have met him, you have discussed the topic, and then he will say that there are already 10 PhD students who have got their degrees awarded under my guidance. So based on offshoot of an executed research, something which is already executed and awarded and published and patented, something which is already done, right? So like PhD awarded, patent awarded, granted, a research paper published. I mean, something outcome of that research has been already done, the executed research. Now you are trying to find out something out of that already executed research based on offshoot of that particular thing, or I can say extrapolation of the same thing. मैंने कॉपर और क्रोमियम यूज किया था, आप निकल और आयरन यूज कर लीजिए, तो हो गया चेंज, राइट. So it is offshoot of an executive, or rather I should say that whenever you are joining certain PhD supervisor, अगर आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद उसके पास ऑलरेडी 10 PhD स्टूडेंट्स होते हैं, तो योर गाइड विल गिव यू, टेक दिस 10 thesis, take this 10 thesis, go through it, find out what suits you, and whatever suits you, then you can come down to me and we can discuss. तो क्या हो गया, ऑलरेडी 10 PhD अवार्ड हो चुके हैं, अवार्ड भी हो चुके हैं, और उसके रिजल्ट भी लग चुके हैं. अब आप क्या कर रहे हो, हर एक PhD में एक इंपॉर्टेंट पेज रहता है, स्कोप फॉर फ्यूचर वर्क. What is that? Scope for future work. We plan 10 things, but first 5 things itself take almost 4 years. And those 4 years, then you feel like there's sufficient work done. 4 years are already over. We have to submit within 5 years, and then we need to do analysis and interpretation of all the data which we have collected. So all said and done, we take a pause. We take a small comma into it, that let us freeze it here. We have decided for 10 things to do, but now 5 things are sufficient to submit a PhD. तो बचे 5 चीज वो अपने आखिरी पन्ने पे लिख देता है, स्कोप ऑफ फ्यूचर. So you have to reach out to that scope for future work, and then you start working. This is a typically done second way of designing and research task and its approach. पहला तो हो गया लिटरेचर रिव्यू, वो कीवर्ड ले लो, ढूंढते बैठो, 50 पेपर ढूंढ ले तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा क्या ट्रेंड चल रहा है वो टाइम की रिसर्च में. फिर बेस्ड ऑन ऑफशूट मतलब क्या, ऑलरेडी PhD हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, उसमें से मैंने कोई धागा पकड़ लिया, एंड आई एम एक्स्ट्रापोलेटिंग इट फॉर माय फर्दर प्रोजेक्ट. मैं थोड़ा सा चेंज करके उसको आगे ले जा रहा हूँ, उसी का जो ऑफशूट निकल रहा है उसी पे काम कर रहा हूँ. तो ये सारा चीज ऐसा हो जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन ऑफशूट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग. See my screen, you can take screenshot, this already copyrighted, already I have copyrighted this my approaches, ये नहीं, इसके आगे की slide. So and the third is simulation based research.
on some proven physical system, like कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क हुआ है, सर्वे हुआ है, एनालिसिस हुआ है, वो एक प्रूवन सब्जेक्ट पे कुछ फिजिकल सिस्टम पे काम हो गया है। अब वो काम हो गया है तो उस काम से उस काम की रिलायबिलिटी निकालना है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट करना है, उसका स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाना है, उसका you have to create a reliability of it, stability of it. You want to make it more generalized mathematical equation for that, so that any further research with similar conditions, if you apply, you can get solutions ready made. So there are ways and means of doing using softwares, sitting at home with your laptop, and you can complete your work, which is again eligible for getting a doctoral research or postdoc research. But this is also third way, which I am not endorsing. ये सब तो कर ही रहे हैं ना, लिटरेचर रिव्यू बेस्ड हो रहा है, बेस्ड ऑन ऑफ शूट ऑफ रिसर्च, क्योंकि जिस गाइड के पास 10-15 स्टूडेंट, 15-20 स्टूडेंट हो गए, तो ऑब्वियसली यू विल एक्सटेंड दैट वर्क। एंड थर्ड इज सिमुलेशन बेस्ड, लाइक इफ यू आर नॉट इफ यू आर वरीड टू ट्रैवल, ये तो मुंबई आईआईटी जाना पड़ेगा, इसमें तो खड़गपुर जाना पड़ता है, यहाँ पे पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं पे है, राजकोट यूनिवर्सिटी में ही है, यहाँ है, वहाँ है। अगर इससे कुछ रहा, मेरे वक्त था कुछ काम सिर्फ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में ही काम होता था, अब मैं कर नहीं पाता था। तो मैं अगर कर नहीं पाता था तो मेरे को वहां जाना पड़ा, तो मैं 15 दिन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी रुका, गया, आई स्टेड देयर एंड आई कंप्लीटेड माय एक्सपेरिमेंटल वर्क। सो पॉइंट इज, देयर आर यू नो there are ways and means of carrying out research. Somewhere you need to travel, somewhere you need to actually put in hours and hours into the laboratory, somewhere you need to put it so many hours on software and laptop and screens, depends. तो जिसको सॉफ्टवेयर में मजा आ रहा है, जिसको मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है, मॉडलिंग में मजा आ रहा है, तो ही कैन क्रिएट mathematical model for something physical system which has been already proved and got awarded for PhD. So these are three typical traditional way: literature review based, based on offshoot of research, and simulation of the already executed work. ये तीन को मैं ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लानिंग PhD बोल रहा हूँ। ये रिसर्च टास्क डेवलप करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ: अप्रोच फॉर डिसाइडिंग रिसर्च एंड इनोवेशन टॉपिक, सजेस्टेड न्यू वेज, रीचिंग द अनरीच्ड। ये रीचिंग द अनरीच वाला काम है, यूजफुल टू इंडस्ट्री, गो टू इंडस्ट्री। अब थोड़ा मेहनत है इसमें, देखो इसमें कैसा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ऐसे भी टीचिंग लर्निंग में भी हम लोग आज बोल रहे हैं कि वी नीड टू हैव एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो फर्स्ट थिंग इज यूजफुल टू इंडस्ट्री, यूजफुल टू इंडस्ट्री। Go to various industries, or rather industries which are falling into your domain of interest, and then you can find it out that yes, this industry का ये डिपार्टमेंट में ये वाला काम जो है, ये तो मेरे बिल्कुल काम का है। अगर ये ऐसा कुछ होता है, इफ यू कैन गेट दिस थिंग, देन you can think of like doing something on that angle. और मैं जाता हूँ, आई कीप ट्रैवलिंग एंड मूविंग इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज। हमारे कॉलेज के सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने कल ही बताया था, जाता हूँ वहां पे, and I can go to TCS and Infocept and Delaplex, and I go to Baidyanath for that matter, and I go to whatever factories and IT companies. One should move around and travel, and then you can find it out that yes, this is what I wanted to do, and that is the problem. So go to industry, talk to them, understand their problems, tell them that I can be of some certain help into this domain. ये मेरी expertise है, और ये मेरे दोस्त लोग हैं, इनकी भी एक्सपर्टीज है। मैं हमेशा जब इंडस्ट्री जाता हूँ तो मैं मेरी एक्सपर्टीज बाद में बताता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे पास 150 PhD स्टूडेंट टीचर्स है, मेरे पास AI में है, मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी में है, केमिकल में है, IT में है, CSE में है, मेरे पास मैकेनिकल के 18 PhD है। आप बोलो केमिकल के 12 मेरे पास सब है, मेरे पास मतलब मेरे कॉलेज के पास। तो आई एम अ टीम ऑफ दिस। सो आई एम रेडी टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, प्लीज लेट अस डिस्कस। और आई टेल यू, इंडस्ट्री हैज गॉट हंड्रेड्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स, दे डोंट अफोर्ड टू स्पेंड टाइम ऑन दैट। टाइम वेस्ट लगता है उनको, टाइम वेस्ट तो छोड़ो, वो रिपेयर भी नहीं करना चाहते, रिपेयर की जगह रिप्लेस कर डालते हैं। 5 लाख में रुपए में रिपेयर हो रहा है, वो 2 करोड़ का पार्ट बदल डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्शन रोकना नहीं है। they can't afford to stop the production for making its maintenance and repairing and all that. They can't afford. वो क्या करते, 2 मिनट में पार्ट ले लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, 2 करोड़ का पार्ट रिप्लेस कर देंगे। दे डू लाइक दैट। बट वी आर टीचर्स, यू एंड मी आर टीचर, we can study, we can analyze, we can interpret the data, and we can suggest something new, and then all that is like we can find out the gap between that,
स्किल गैप, नॉलेज गैप, कॉम्पिटेंसी गैप, वो गैप है उसमें हर एक जगह। वो गैप फिल करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल देना सकता है क्या हम? ये सब कुछ हो सकता है अगर आप इंडस्ट्री में जाके बात कर सकते हो। मैं तो कई इंडस्ट्री घूमते रहता हूँ, चले जाता हूँ। इन्फोसिस में चले जाता, हमारे होटल की करके वहां चले गया था। अभी परसिस्टेंट में तो कितने बार जाते रहता था। तो ऐसा कहीं पे भी जाओ, बात करो, मिलो, एंड देन दे विल ऑलवेज बी हैप्पी टू रिसीव यू, नॉट ओनली टू रिसीव यू बट दे विल ऑलवेज टेल यू, हाँ यार वो हमारे पॉलिटिशियन उसमें वो प्रॉब्लेम आहे ना, हा वो आमचं पेंट इंडस्ट्रीमध्ये जे पेंटिंग होतं त्याच्यात थोडंसं खूपच प्रॉब्लेम है, वेस्ट मॅनेजमेंटच होत नाही आहे, उसके पास 10 प्रॉब्लम्स रहते, प्रोवाइडेड आप वो करें तो। अगर आप करना नहीं चाह रहे तो मग तर काहीच नाही होणार. लेकिन आप अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे ना, तो इतना मजा आता कि आई कैन नॉट टेल यू। इतना मजा आता उसमें कि उनके पास एक से एक चीज है। दे विल ऑलवेज हैव लाइक ये भी है मेरे पास, वो भी है। सो दे कैन टेल यू सो मेनी थिंग्स, एंड इफ यू कैन note it down and find out, it can have like something like interdisciplinary also. ते असेल तरी चालतं ना मला. मेरे को कुछ भी चलता, मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी रहे तो और अच्छा है. माझंच काम आहे जे 100% जे काम आहे माझं, त्याच्यातलं आता मी 25% किसको दे रहा हूँ, मैथ्स वाले को. उसमें का 5% किसको दे रहा हूँ, बॉटनी वाले को. ये तो अच्छी बात है ना मेरे लिए. दिस इज गुड फॉर मी. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट वॉट एवर आई एम डूइंग, इफ आई कैन हैव पार्टनर इन टू दैट, इट इज मोर देन, मतलब बहुत अच्छी बात है. सो इफ वी कैन डू दिस, देन दैट इंडस्ट्री वाला आपको क्या बोलेगा कि अरे सर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, आप बोलो क्या पैसा खर्चा आ रहा है उसमें. ये नेक्स्ट स्टेप रहती है उसमें, और वहीं पे हमको अटैक करना है. ये बोलेंगे सर ये काम है, मैं बोलूंगा यार ये काम के लिए इतना पैसा लगेगा यार, मेरे पास तो इक्विपमेंट ही नहीं है, मेरे टीचर पर आवर कुछ पैसे मांगेंगे, रेमुनरेशन कहाँ से दूं. ये कुछ ना कुछ उसमें किचकिच होने वाली. वो हो गई तो फिर उनके लिए वो चीज बहुत छोटी रहती, जो हमारे लिए बहुत बड़ी रहती. Are you getting my point? For them, it is very small thing that paying some 10 lakhs rupees for your work, 25,000 for something. ये ट्रैवल करना, ऐसा दिल्ली जाना पड़ेगा ना 2 बार, तो दिल्ली जाके आओ. यू नो दिल्ली जाना है तो 2 बार जाके आओ. सर उसमें 50,000 खर्चा आएगा तो कर लो. इट इज एज सिंपल एज दैट. इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट बिकॉज उनके लिए वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके लिए वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है. वो काम के लिए पैसा कितना लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. और वो काम खुद नहीं कर सकते, सोल्यूशन खुद नहीं निकाल सकते, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते. मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऐसे ही जाके पूछा था कि सर ये वो अरे यार बोले तुम ये पढ़ाकू बातें मत बताओ. यू आर टीचर, यू आर प्रोफेसर, सो यू विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ ये नॉलेज, वो नॉलेज, ये स्किल, ह्याच्या इक्वेशन, हे पुस्तक वाचलं का, आम्हाला वेळच नाही. वी डोंट हॅव टाइम फॉर लर्निंग एंड फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन, एंड ते कागज घेऊन बसायचं. और अपन भी ये काम करते टीचर होने के कारण. बोले, मैं बोला भाई मैं करता हूँ ना आपके लिए ये सब. मैं ये सब करता हूँ. मैं आके आपको रेडीमेड ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के देता हूँ और आपके सीनियर मैनेजमेंट को पढ़ा देता हूँ. एंड दे वर सो हैप्पी. मतलब मिला तो हमको, आई मेट ऑल सीनियर मैनेजमेंट देयर, एंड देन वी टॉक टू देम. दे सेड हमको ये प्रॉब्लम है यार, वो प्रॉब्लम है. 20 साल पहले वीएनआईटी का पास आउट हूँ, तब से मेरे को पढ़ाई का टाइम ही नहीं. इंडस्ट्री में इतना प्रेशर है, इतना काम है, वो जो काम है वही सीखने में इतना टाइम लग जाता, तो मैं ये सब ट्रेनिंग नहीं कर सकता. तो फाइन, आई सेड आई विल डू फॉर यू. मैं पढ़ाई करने में उस्ताद हूँ, मैं कुछ भी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैंने मेरी टीम कर सकती है. तो उसमें तो मेरा फिजिक्स का ही बहुत सारा निकल गया. देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा कोर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें भी उनको फिजिक्स बहुत सारा सीखना था, केमिस्ट्री सीखना था, मेटलर्जी सीखना था, मैकेनिकल सीखना था. उनको आइडिया क्लियर करनी थी, क्योंकि उन्होंने तो 20-20 साल पहले डिग्री की, ये सीनियर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले डिग्री ली थी. अब जब मैंने ये सब देना चालू किया, पढ़ाई चालू किया, और मैंने उनको एक उनके हिसाब से बोले हमको बुधवार को सिर्फ बंद रहता, उस दिन ट्रेनिंग दो, और संडे को हम थोड़ा कम फ्री रहते, तब दे रहे. मैंने संडे वेनसडे, संडे वेनसडे, संडे वेनसडे करके हमने 4-4, 5-5 घंटे उनको ट्रेनिंग दिया. दे पेड अस वेरी हैंडसम, क्योंकि उनका काम बन रहा है. वो भूल चुके थे, उनको हमने टेबल्स देके बना के दिए, उनके डेटा को एनालिस करके दिया, उनको नॉन कॉन्टेक्ट टाइम टेस्टिंग का मेजर्स बताए. और जो ज्ञान की बातें हैं, जो किताबी बातें हैं, वो भी किसी किसी के काम में आती है ना. और हम सो टीचर हैं, तो हम तो यही काम कर रहे हैं. सो टीचर्स, दैट इज द पॉइंट. सो अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको ये सब अभी सीख लेना पड़ेगा. मतलब सबसे बड़ा पीएचडी का प्रोग्राम लिखना है, तो मेरे को उसके लिए आई नीड टू गो टू इंडस्ट्री. सेकंड, इंडस्ट्री जाइए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है आजू बाजू, नागपुर में भी है, सब जगह है. और नहीं है नागपुर में तो पुणे में है, तो पुणे जाएंगे. यूजफुल टू इंडस्ट्री.
वहां जाओ, उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढो, वो प्रॉब्लम से मैं अपना मैच करो, अपने मैच से अपने को कुछ जम रहा क्या। ये सोचना ही ट्रू अप्रोच फॉर डिसाइडिंग अ रिसर्च टास्क है। सेकंड है यूजफुल टू सोसाइटी। अगर आप इंडस्ट्री में नहीं जा पा रहे, अपने को नहीं मजा आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा वो इंडस्ट्री का, तो देन यू शुड गो टू वेरियस सोसाइटी सेक्टर्स लाइक फार्मिंग, लाइक स्मॉल विलेजेस, ऑर्फनेजेस, महिला आश्रम, बाल आश्रम, स्कूल्स, कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, ये सब के पास जाइए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट sectors of our society. We need to impact them with our education, with our research. So go to them, find out the problem, and the moment you reach out to some vruddhashram, moment you reach out to some old age home or orphanage, they will have a list of problems. सर ये नहीं जमता, ये नहीं, ये सिविल का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है, सर ये हमसे शॉर्ट हो। नो प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम में हमको हमारा पीएचडी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट करना है। अगर वो हम कर पाए, कर ही पाते हैं मतलब, तो आपका पीएचडी का पीएचडी, रिसर्च पेपर पेटेंट भी हो जाएगा, प्लस सोसाइटी के किसी इंपॉर्टेंट सेक्टर का काम भी बन जाएगा। सो यूजफुल टू सोसाइटी इज अ सेकंड। अब ये दोनों नहीं किया, अगर मैंने इंडस्ट्री भी नहीं किया, मैं कोई सोसाइटी में जा जाके घर 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 जाके पूछ नहीं रहा हूँ कि भाई आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है क्या, मेरे लायक कुछ है क्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, फाइन। तीसरा अपने आप करने वाली चीज है एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू डेवलप इंडिया। Government has got hundreds and thousands of crores of grants for development of India. Vikasit Bharat 2047, Vision 2035, ये सब डॉक्यूमेंट है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, एंड देन कौन सा प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। अरे हजारों है, और हर एक के पास इफ यू आस्क कि आपको कितनी ग्रांट डिसिमिनेट करना है, तो वो दैट विल बी इन 100 करोड़ ओनली। मेरे को 300 करोड़ मिलने, मेरे को खत्म करना है, मेरे को 200 करोड़ खत्म करना है। अरे तो वो करोड़ 200 करोड़ किस डोमेन में खर्चा करना है, इसको एक्सप्लोर करिए। अगर वो साइबर सिक्योरिटी में है और अगर मेरा पीएचडी कंप्यूटर साइंस में हो रहा है, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट कर लूंगा और मैं साइबर में काम कर लूंगा, उसमें स्कीम डाल लूंगा। दे विल पे मी सम 5, 10, 15, 20 lakhs, जिसमें मेरा पीएचडी फ्री में हो जाएगा। और पीएचडी फ्री में हो गया, काम हो गया, और वो जो गवर्नमेंट स्कीम में मैंने सबमिट करूंगा, उससे मेरा करियर बनता है, पैसा अलग से आता है। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 2014 में शुरू हुआ। कितना फर्स्ट, पहले डॉक्यूमेंट में कितना ईयर मार्क किया गवर्नमेंट ने, 10,000 करोड़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें से कुछ पोर्शन में हमारा पीएचडी हो जाएगा। एक आधी अच्छी स्कीम मिल गई तो उसमें 5 पीएचडी हो जाएंगे। 5 स्टूडेंट ले लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरा का पूरा काम उसी में हो जाएगा आपका। तो देर आर वेज एंड मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग। पर वही टिपिकल, मतलब ये वाला मेरे को नहीं जमता। ये क्यों करना, लिटरेचर रिव्यू बेस्ड, घर में बैठे गूगल कर रहे, क्या फायदा, आपको कोई एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। बेस्ड ऑन ऑफशूट ऑफ एग्जीक्यूटिव, अरे वो ऑलरेडी पीएचडी हो चुका ना, उसको 3 3 बार पढ़ के और उसी में से एक पिल्लू निकाल के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये सिमुलेशन भी है। आई मीन खैर, आई मीन नथिंग रॉन्ग इन दैट, दीज आर ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्लानिंग पीएचडी। आज से 40 50 साल पहले यही टाइप का पीएचडी होता था। पर आज जरूरत नहीं है ना यार, आज किसी और की जरूरत है, आज पैसा लगने वाला है। आई टेल यू, आई डिड माई डॉक्टरेट फ्रॉम 91 to 94 95, आज से 30 साल पहले। दैट टाइम आई स्पेंट अराउंड 4 5 lakhs ऑन माई पीएचडी। उस जमाने में जेव्हा माझी फी 80 रुपये होती पीएचडीची, तब मैंने 5 लाख रुपए खर्चा किया। क्यों? क्योंकि फंडेड था, ये जेब से थोड़ी खर्चा कर सकता था, मैं तो नौकरी करनी पड़ रही थी। बट द पॉइंट इज दोज डेज 91 to 94 I could spend 4 5 lakhs because my entire project, PhD project, was funded by Atomic Energy Commission. मेरा ट्रैवल, मेरा मेरा फूड ड्यूरिंग ट्रैवल, मेरा जेरोक्स, मेरा डाउनलोडिंग ऑफ पेपर्स, मेरा इंटरनेट यूज, मेरे को हर चीज फंडेड थी। और वो फंडेड थी तो मैं इतना सारा ट्रैवल कर सका, 350 जगह जा सका। वो इसीलिए कर पाया क्योंकि क्योंकि पैसा बहुत था। हर अच्छी क्वालिटी काम में पैसा बहुत लगता है। आप कहीं भी जाइए, आपको पैसे की जरूरत है, और फिर पैसा जेब से क्यों डालना, और फिर कॉलेज को मांगना और डिपार्टमेंट को मांगना क्यों। देर आर पीपल, देर आर गवर्नमेंट सेक्टर्स विच आर रेडी विद द crores ऑफ फंड्स, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज देम। सो थर्ड वे, पहला यूजफुल टू इंडस्ट्री, दूसरा यूजफुल टू सोसाइटी, तीसरा एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू डेवलप इंडिया।
खूब इंडिया खूब स्कीम है यार, 10,000 करोड़ थे 2016 में, और वो खत्म कर लिए। 10,000 करोड़ गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर स्टार्टअप इंडिया। उसमें उस टाइम टू व्हेन द फंड वाज ईयरमार्क, दैट टाइम इन इंडिया टोटल रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स वेर सम 400, and by the time they declared this 10,000 crores to be distributed for as a seed money, as a funding for startups, 1.25 lakh startup चालू हो गए। 1.25 lakh startup started and consumed this 10,000 crores rupees they used, और खत्म भी हो गए 3 साल में। अब उसमें 4-4 पीएचडी होती थी यार। वो फार्मा सेक्टर रहे, वो रबर सेक्टर रहे, वो फैक्ट्री सेक्टर, उसमें बहुत हो जाता था ना। अब जिन जिन ने लिए होंगे, किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़, 10,000 करोड़ है ना, उसमें तो कुछ ना कुछ स्टार्टअप में इनोवेशन तो होता ही है। सो वो इनोवेशन के बेस पे हमारा पीएचडी भी हो गया रहता, रिसर्च भी हो गया रहता, सब कुछ अच्छी से हो गया रहता। सो एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। दूसरा आता है कि एवरी रिसर्च फंडिंग स्कीम लाइक CSIR, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड देन CMPDI, एंड देन UGC, DST, DBT, COSTIP, 50 फंडिंग एजेंसी। Every funding agency, research funding agency, has got thrust area declared for an year or for current year for 2 years. Find out whether your interest and your topic matches with the thrust area of any research funding scheme. अगर वो मैच हो जाता है तो हो गया मस्त। फिर वो फंडिंग डालिए, आपका इंटरेस्ट, आपका वो सब देख के गाइड का प्रोफाइल लगाइए, एंड यू विल बी हैप्पी टू सी दैट आपका पीएचडी 25 लाख रुपए में खर्चा हो रहा है, और वो पूरा गवर्नमेंट दे रहा है। So thrust area mentioned in the research funding scheme vis-a-vis mapping with your own interest, passion and your research interest, ये सब मैच कर लिया तो कहीं ना कहीं मैच मिल जाएगा, मिले बराबर। वो रिसर्च स्कीम आपको पक्का मिलेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर रिसर्च किया हुआ है। और यस, वॉट एवर मनी है, आपकी पीएचडी का काम है, 10 बार IIT जाना है, 4 बार समझो लंदन जाना है, जो भी कुछ काम है, वो सबके लिए पैसा मिल सकता है, क्योंकि रिसर्च फंडिंग में देर आर एवरी कैटेगरी। ट्रैवल कैटेगरी है, कॉन्फ्रेंस कैटेगरी है, उसमें स्टार्टअप के लिए कैटेगरी है, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, उसके उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द सोसाइटी की फंडिंग है, सब कुछ फंडिंग है। सो ट्रस्ट एरिया इन रिसर्च फंडिंग स्कीम इज अनदर फोर्थ वे ऑफ creating and developing your approach. And fifth is trust area mentioned in the international funding schemes. इंटरनेशनल फंडिंग की स्कीम है, दो पिछले 10 से 12 साल में एवरी डे पीएम ऑफिस इज साइनिंग सम एमओयू, यू कैन नॉट बिलीव इट। इंडो यूके, इंडो इजराइल, इंडो अमेरिका, इंडो यूरोप, and Indo Japan, Indo China. These all these have signed a pact and a memorandum of understanding among these two countries for sharing the expertise, facilities, and funding for taking ahead the research into particular domain. So इंटरनेशनल फंडिंग का भी एक डोमेन होता है, हर साल नया होता है। अगर आप यूरोपियन पकड़ रहे हो, जैसे मेरा शौक है, आई ऑलवेज गो टू यूरोपियन यूनियन, and I asked European Union what is the niche area next year. They said last 2 years back they said cyber security. They started working on that, and then we could fetch 75 lakhs rupees for cyber security. उसके पीछे लगे क्योंकि उनको साइबर ही इंपॉर्टेंट था उस साल साइबर पे लिया। उसके पहले ग्रीन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट था, तो उसमें पैसा हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाए, मेहनत किए, सीनियर टीचर्स को इन्वॉल्व किए, उनके क्वालिफिकेशन बहुत हाई थे, अच्छे थे, वो सब करके उनको दे दिया, तो वो ग्रांट मिल गई हमको। तो बात यह है कि thrust area of research funding, thrust area of international funding should match your own interest and passion towards research. You will have an abundance of funds and facilities, and the kind of the kind of appreciation in the field would be a great. छठवा, topics of various hackathons like Smart India hackathons। क्या है सारी hackathon? What is a hackathon? Every 2-3 महीने में you come to know an announcement that there is an hackathon paying 1 lakh rupees to 25 lakhs rupees as a prize money। किस लिए दे रहे? What is hackathon? Hackathon is a collection of problem statements of a particular sector, petroleum sector, rubber sector, and plastic sector, and automobile sector, and waste management sector. I mean, there are sectors on which there are industry sectors sitting on it. I've been to Delhi many times,
एंड आई कुड सी दैट अरे ये तो इसमें इतना सारा काम है। वो सेक्टर ऑफिस में जाते रहता हूँ मैं। I was invited for talking and taking a session on plastic and rubber industry. That time I visited all other sectors and I was surprised to see that these government officers all are doctorates. All are doctorates and ये government offices सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनके उनके सेक्टर की इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जमा कर रहे हैं, उसको आने वाला खर्चा फाइनलाइज कर रहे हैं, और वो सोल्यूशन जो दे सकता है उसको वो पैसा भी दे रहे हैं और प्रॉब्लम भी दे रहे हैं। और वो सोल्यूशन आ गया तो फिर इंडस्ट्री को ट्रांसफर होता है, टेक्नोलॉजी क्रिएट की तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, पेटेंट किया तो शेयर्ड पेटेंट होता है, और उस इंडस्ट्री का वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एड्रेस हो जाता है, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द न्यू एरेना। सो दैट इज द पॉइंट। सो टॉपिक ऑफ वेरियस हैकाथॉन्स, एनजीओस वर्किंग इन द डोमेन ऑफ योर इंटरेस्ट। एनजीओस, बहुत एनजीओस है यार, आपके डोमेन में एनजीओस काम कर रहे हैं ना। आपका कौन सा है, ग्रीन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, फंडिंग है, इफ यू आर इनटू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इफ यू आर इनटू वुमेन एम्पावरमेंट, इफ यू आर इनटू क्लीनलीनेस, इफ उसमें भी पीएचडी के टॉपिक निकल रहे आपके इंटरेस्ट के। और एनजीओ के पास भी, एनजीओ इज अ रजिस्टर्ड थिंग इन दर्पण। तो जैसे नागपुर में पकड़ लो एनजीओ कितने होंगे, तो कम से कम 5,000 एनजीओ होंगे। वो सारे एनजीओ के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो वर्क डोमेन एरिया है, जो उनका यू नो दी दी अप्रोच एंड पर्सपेक्टिव प्लान जो है, उसमें आपका पीएचडी टॉपिक बैठ सकता है कहीं ना कहीं। वो बैठ गया तो एनजीओ विल बी वेरी हैप्पी दैट यू आर परफॉर्मिंग समथिंग साइंटिफिक वर्क एंड दे विल बी एबल टू पे यू। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, सीएसआर एक्टिविटीज ऑफ बिग मल्टीनेशनल। एवरी मल्टीनेशनल, जितने बड़े लोग हैं, अंबानी, नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी, जितने बिग शॉट्स है, उनकी सबकी वाइफ्स का फाउंडेशन चला रहे हैं। आपले नाशिकचे काटकर सर, उनकी वाइफ क्विक हिल फाउंडेशन चला रही, रिलायंस रिलायंस फाउंडेशन नीता अंबानी चला रही। और ये सब तो फाउंडेशंस के पास जितने ऑल बिगर मल्टीनेशनल कंपनीज, दे हैव मैंडेट कि यार ये 500 करोड़ रुपए तुमको खर्चा करना है। तो कहाँ का करेंगे, उनका एजेंडा रहता है। 500 करोड़ में, दिस 500 crores we will be spending into, like this time he will spend into a primary education, sometime next it will Wipro, if you remember, Wipro 10x was a complete proposal of faculty development which they have poured in into crores of rupees। एक एक फैकल्टी को 2 लेक्चर लेने के 10,000 रुपए देते थे आज से 20 साल पहले। वो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एंड देन अकोमोडेशन इन 5-star hotels। Wipro spent crores of rupees on faculty development of teachers। If you can do that, that would be another great thing। उनसे अगर आपका कहीं मैच होता है, सीएसआर एक्टिविटी इस बार एजुकेशन पे है, इस बार स्मॉल स्केल बैंकिंग पे है, इस बार टीचर एजुकेशन पे है, इस बार ग्रीन इन्वायरमेंट पे है, इस टाइम वेस्ट मैनेजमेंट पे है, कुछ ना कोई सीएसआर एक्टिविटी हमको मैच करेगी। वो मैच कर लिया तो हो गया। So I'll request all of you to take screenshot of this particular slide also, because these are the 8 different approaches to reaching the unreached। These are 8 different approaches। ये ट्रेडिशनल तो ठीक है, ये 3 तो अपन ने आपने सबने किए भी होंगे, बट ये 3 है, पर आई एम प्रपोजिंग दिस 8 में से कहीं ना कहीं कुछ आपके पर्सनालिटी को, आपके स्वभाव को, आपके लोकल कंस्टेंट को, आप पता चला गढ़चिरौली में है, आप पता चला आप एकदम मुंबई दिल्ली में है, उसको, आपके सोसाइटी को, आपके स्वभाव को, आपके डोमेन को, आपकी एक्सपर्टीज को, जो भी सूट करेगा, उसमें से आप कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज माई कॉनोटेशन to be presented, that these are the 8 approaches and there can be few more also। This is my experience when I am like traveling and I am meeting people and I understand that yes, अरे ये इसने इतना पीडी के यहाँ टफ हो गया, इतना खर्चे कर नहीं सका, और वहाँ वही टॉपिक तो यहाँ स्कीम में वहाँ सब कुछ कर सकता है। पॉइंट इज, एनईपी चैप्टर 7 रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर 17 है हायर एजुकेशन में, इट से दैट एनी हाई क्वालिटी इनोवेशन एंड R&D नीड गुड अमाउंट ऑफ फंड्स। Any good research, any higher end quality research needs lot of funds। मैं मेरे 2 लाख में कर लेता हूँ, 1.5 लाख मेरा बजट ही नहीं है, कॉलेज की फी 2.5 लाख है, एक अलग एस्पेक्ट है। एंड यू विल नॉट बिलीव, इसके पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1984 में, उसमें यही प्रॉब्लम थे, पैसे नहीं है, रिसर्च के लिए पैसे नहीं, हायर एजुकेशन वालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सेटअप नहीं, कैंपस में प्रोफेसर्स नहीं, टीचर्स नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं,
तब गवर्नमेंट ने, सॉरी, ये रिकमेंडिंग कमिटी जो थी एजुकेशन पॉलिसी 1984 की, तो 34 साल, 34 और 5, 40 साल पहले जो एजुकेशन पॉलिसी दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसमें बोला था कि 4% ऑफ जीडीपी शुड बी ईयरमार्क एंड स्पेंट ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। 4% ऑफ जीडीपी कब बोला था? 1984 में। आज जब न्यू कमेटी बैठी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी बैठी 2015, 16, 17 में, then they decided that they referred the old document and they found that yes, 35 years, 40 years back, someone has proposed, a similar committee of new education policy then has proposed 4% of the GDP should be earmarked, should be spent on research and development. Then and then we can see some substantial growth in the research and development component. Otherwise, you see that we hardly have any Nobel Prizes. We hardly have any patents. A single Apple company has got 95,000 patents. अब हम कहाँ सुने अभी? 1,000 पेटेंट, असे 95,000 पेटेंट, उसमें के 78,000 पेटेंट्स आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ while manufacturing of these phones, iPads and tablets. 78,000 पेटेंट एप्पल के नाम पे, 95,000। सो 4% ऑफ जीडीपी तब प्रपोज किया, और जब ये कमिटी को देखना था कि क्या करना है, क्या करना है, तो इन्होंने क्या किया? पुराना ढूंढा, फिर करंट ढूंढा, तो करंट दे केम टू नो 2020 द फंडिंग, विच वॉज ईयर मार्क 4% बोला था 40 साल पहले, 35 साल पहले। आज भी देखा तो कई गांव, कई स्टेट में 0.2%, 0.5% ऑफ जीडीपी, 0.2% ऑफ जीडीपी। टोटल एवरेज ऑफ द कंट्री फॉर फंड फॉर वॉज 0.69 ओनली। कितना था? 0.69%। तो ये कमिटी क्या करेंगे? बोलेंगे आज 0.69 है, कम से कम 4 करो फिर से। सो फिर से एनईपी ने 40 साल इतना पिछड़ा हुआ एजुकेशन को पैसे की क्या क्या लिमिट डाली कि एटलीस्ट 4% वी शुड स्पेंड ऑन दैट। 4%, फिर से पैसे की गरीबी आ गई। वो 4% भी अभी भी मेरे को नहीं मालूम कि खर्चा हो रहा है कि नहीं। ये 2020 में, 2020 में ये प्रपोज किया गया, बट यू नेवर नो वेदर दे आर रियली spending that amount on research and development. You never know. So please see to it that ये पैसा भी कहाँ से आने वाला है, और ये आ रहा है। अच्छा, ये इंडिया का हो रहा है, ये तो इंडिया से, लेकिन बाहर कंट्री में मैं बता रहा हूँ, जैसा हर कंट्री के साथ हमारा पैक्ट है। एवरी कंट्री, एवरी यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, लंदन, इसराइल, इंडो इसराइल प्रोजेक्ट है। इंडो जापान, इंडो चाइना, इंडो यूके, इंडो लंदन, इंडो यूएस, इंडो जर्मन, इंडो फ्रांस, इस सब ये है ना यार। ये कौन यूज करने वाला है? एवरी डील, एवरी ट्रीटी, एवरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज फुल ऑफ लाइक few thousand crores. Who is going to bell the cat to find out these funds? And why we are not, we are deprived of going for good qualities this thing? हम क्यों नहीं कर पाते? पैसे नहीं हमारे पास। अरे खर्चा करो नहीं, 50 सैंपल में डिजाइन तो कर सकता, मेरे पास केमिकल है, केमिस्ट्री में, लेकिन उसको टेस्टिंग करने जाओ, एक सैंपल का 5,000, 50 सैंपल का 2.5 लाख रुपए लगता है मेरे को। तो 2.5 लाख रुपए बच्चा देगा कि मैं दूं? तो ठीक है, कैंसर, ठीक है, 5 सैंपल करते, वो नहीं चलता। पॉइंट इज यू नीड मनी and you should not put it from pocket because you are doing for the society, for the country. So 4% of GDP ही अभी फिर से डेवलप किया गया है। लेट अस सी कि वो मिलता है कि नहीं। बट एज आई से 4 तक का तो ठीक है इंडिया का है, लेकिन हमारे पास तो बहुत है ना यार। हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज है जो क्रोर्स ऑफ रुपीज इसके ऊपर डाल रहे, तो उनसे समझ लो कि उनके पास कुछ चमत्कार फंड्स है क्या। पॉइंट इज यू कैन नॉट सिट डाउन विथ योर गाइड इन टू योर लेबोरेटरी, यू हैव टू रन for self-learning and lifelong learning. You have to undertake experiential learning completely, like site visit, discussion, case study, research, contribution, consultation, ये सब करना पड़ेगा। और ये इसके लिए मेरा मंत्र है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। अगर हम ये कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग सीख लेना प्रॉपरली, त्याचं लाज वाटायला नको, त्याला कितना गावगिरी कर रहा, या डर लगना नहीं चाहिए, फियर ऑफ फेलियर। कैसे बात करूं यार, भगा देंगे, बोलेंगे बुकट के पैसे क्या। अरे बोलेगा ना, वो बोल ही नहीं सकता ना। आप इतने एक डिग्निफाइड प्रोफेसर हो, ऐसा बोल ही नहीं सकता। ही सेड सॉरी, आई डोंट हैव फंड्स फॉर दिस, इतना ही बोलेगा ना। तो पर पूछा ही नहीं तो पूरा परमानेंट अपना चांस चल जाए।
So this is an era of international, interdisciplinary, symbiotic research. We all need to dissolve walls of faculty, subjects, branches, specialization, cities, universities, senior and junior, स्टेट कंट्री, ये सबकी बॉर्डर्स मेरे को डिसॉल्व कर देनी पड़ेंगी, बिकॉज आई नो that every in-depth and successful and useful research has its solution in each other's field. Very important sentence. You can take screenshot of this. Every in-depth, successful and useful research has its solutions in each other's field. अगर वो ऐसा है तो फिर मेरे को कोलैबोरेशन के बिना ऑप्शन ही नहीं. And I tell you, like I have learned this thanks to my PhD supervisor, Professor D.K. Kulkarni sir. He was HOD professor at Institute of Science, Government College, Nagpur. I completed my project, MSc project under him in 1991. Result भी आने का था. And he said कि नहीं, you should continue here. You did a good work. You should continue the same research and let us finish it in next 3 years. And you can go to BRC and take an interview and see to it that you can crack that thing. तो आपको पूरा प्रोजेक्ट फंडेड रहेगा. 3 साल में बराबर PhD खत्म हो जाएगा और वो भी पेड रहेगा पूरा. So 91 to 95 taught me the importance of networking and collaboration for successful research and innovation. ये 4 साल ने मेरा विजन चेंज कर दिया. मैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में था. After post graduation, I told at my family that sorry, I am not going to do job at all. I'll be enterprise. I'll create my enterprise. I'll do some small business and then I'll create a longer. But this PhD opened up very different avenues for me. I have worked in 16 important laboratories across, 16 world-class physics laboratories, and not physics, different laboratories into those 4 years. 4 साल में मैं 16, that was the point. 4 years and 16 universities I visited, out of which Dhruva Reactor, like Bhabha Atomic Research Center, which was commissioned then those days only in 1991, solid state physics of lab. I like हर 2 महीने में मैं BRC जाता था. So Bhabha Atomic Research में तो समझो मैं 4 साल में कम से कम 10 बार गया. So what was the topic of your research, sir? It was nuclear physics. It was a neutron scattering and the structural study of magnetic materials. तो वो तब फैसिलिटी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की हैंडी नहीं मिलता था, तो सिर्फ ध्रुव रिएक्टर में इट वाज देयर. सो एंड ध्रुव रिएक्टर वाज आल्सो कमीशनड इन 1990 ओनली. तो वो फुल स्विंग 100 मेगावाट से न्यूक्लियर रिएक्टर होता और वो भी ठीक से नहीं चलता था. तो उन्होंने 4-5 यूनिवर्सिटी को एक्सेस ओपन किया था कि यूर स्टूडेंट्स कैन कम एंड वर्क देयर and we'll fund their entire expenses so that उनका एक्सपेरिमेंटेशन फास्ट हो जाए. सो ध्रुव रिएक्टर में मैंने 4 साल, 3 साल, 3.5 साल काम किया. एंड देन न्यूट्रॉन स्कैटरिंग and nuclear, neutron diffraction, and depending on that we wanted to study the magnetic structure of those kind of materials which were useful for storage devices. तो वो काम था. तो ध्रुव रिएक्टर में तो मेरे को-गाइड थे प्रोफेसर एस के परांजपे, और उन्होंने मेरे को हर जगह चिट्ठी देते थे. गो टू BRC, गो टू IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस. आई हैव वर्क फॉर 3 months during my PhD work. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. Yes, I have worked for like many days there. Geological Survey of India. Yes, I have worked there. Institute of Science, Mumbai, Nagpur, Tata Institute of Fundamental Research, Saurashtra University, Rajkot, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, CAT, CAT, Center for Advanced Technology. ये भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बहुत रिनाउंड लैब है. वहाँ पे मैं 25 दिन था. तो ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी बिकॉज इट वाज एन एंटायर फंडेड प्रोजेक्ट एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग. एवरी टाइम आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड आई यूज्ड टू बुक माय नेक्स्ट टिकट्स, बिकॉज मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ बैठ के करने से अच्छा. When I first visited Saurashtra University, Rajkot, my professor Dr. Kulkarni, he recommended Professor R.G. Kulkarni at Saurashtra University, and he said, go and meet him and you will find solutions for all your problems. And exactly same thing happened. I went to Saurashtra University and I asked him, and he was like encyclopedia. He had that time 40 years of experience and was his encyclopedia of everything. He was almost Google. जे विचारलं ते सांगायचे अगदी प्रेमाने बसून समोर बसून, आणि विथ रेफरन्स ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड पेटेंट्स एंड पेज नंबर पासून पाठ होते. अब ये सब पढ़ाई में 10 साल कोई लाइब्रेरी में करूँ ना तो नहीं कर सकता था. वो एक कुलकर्णी सर से मिलके आ गया तो मेरा 10 साल की पढ़ाई हो गई, क्योंकि उनको सब पाठ था, मेरे को बस नोट कर रहा था. तब तो मोबाइल नहीं था, रिकॉर्ड नहीं कर सकता था. मैं बस कट अपना हाथ से लिखना शुरू कर देता था, उसकी नोट्स बनाता था और फिर उसको स्टडी करता था.
So, those were the days. But fine, today it's not like that. But actually traveling to the places makes you much smarter, much into this collaborative ventures, and you can work. NCL पुण्याला काम केलं, पुणा युनिव्हर्सिटी में मैं 1.5 महीना काम किया, क्राको युनिव्हर्सिटी पोलंड में काम केलं. 16 लॅब आणि त्यातल्या जे 3 लॅब होते तिथे कमी कमी 5-7 वेळा. So you can imagine like 48 months and around 20 travels. So that is how, that gave me an experience. And I found one thing important, that लोगों से मिलने से people are best books, best knowledge के भंडार अगर कोई है तो लोग है, ना कि लाइब्रेरीज है. कुठे नहीं मिळालं तर लाइब्रेरी वाचावंच लागेल. पर अगर वो आदमी से मुलाकात हो जाए जो इतना धुरंधर है, 4 साल से 40 साल से उसमें डूबा हुआ है, तो उससे मिलना परिसर स्पर्श सारखं असतं. म्हणजे बहुत मजा आहे. तो तब से मेरे को आदत लग गई नेटवर्क करना. नेटवर्क इज नेटवर्क. Travel, meet new people, cover entire band of society, send students to slums, go to underprivileged area, reach out to all sectors of society, and you will find that अरे यार यहाँ ये problem था, अरे इथे मस्त होतं, अरे तिथे मस्त होतं, and these collaborations and network should always be mutually benefited. If it is not taking care of mutual benefit, it will not go for long run. Any network will survive only if it is win-win proposition. You need to do need analysis of a person, of organization, and offer the same. मैं अगर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में जा रहा हूँ, वहां पे मेरे दोस्त है, अभी दोस्त हो गए, मतलब डॉक्टर मृत्युंजय. ही इज रनिंग इंडियाज बिगेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर. हर एक ग्रांट 50 लाख की, करोड़ों की, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़. मतलब वो बंदा 100 करोड़ के नीचे बात ही नहीं करता. ही इज अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री. Whenever I go to him, I frequently visit Kalinga University in Bhubaneswar, and then we have been working. We have worked like almost 5 ते 6 वर्ष आम्ही सोबत काम केलं. वो बंदे के पास जाना एक ही फायदा होता था कि इतना भयानक मोटिवेशन मिलता था कि अगले 1 साल का मोटिवेशन. मृत्युंजय सर के पास जाने के बाद जब हम वो थोड़ा सा राउंड मार के लेके आते थे ना मेरे को, तो आदमी ऐसा होता था कि यार आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइफ. ही विल टेल मी लाइक, विवेक सर अभी ये 50-50 लाख की 12 स्कीम ले लिया मैंने, ये 4.5 करोड़ का पूरा बिल्डिंग फंड ला गया था डीएसटी का, ये इधर से आया, ये उधर से आया, ये स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया तो उन्होंने मेरे को ये 6 करोड़ रुपए दे दिए. आई मीन एनीथिंग बियॉन्ड 100 करोड़ की बात ही होती थी उनके सामने, आज भी है. आज तो उनको पूरा स्टार्टअप इंडिया का कंप्लीट स्प्रेड आउट करना, इट इज $1 बिलियन का काम, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न ऑल स्टेट का काम का इंचार्ज डॉक्टर मृत्युंजय को बना दिया गवर्नमेंट ने, जस्ट बिकॉज लुकिंग टुवर्ड्स हिज नेटवर्किंग कैपेसिटीज and the business incubation ideas he can create and nurture and guide and mentor and foster. That is how it is working. So you need to do need analysis of a person, organization to offer the same. Give and take, balance there. List out the common interest. मेरे को अगर आपसे XYZ से, मेरे को अगर VNIT से मेरे को कोलैबोरेट करना है, अब VNIT का मेरे को ऐसा आदमी पकड़ना पड़ेगा जिसको कुछ वो चीजें नहीं आती जो मेरे को आती, और मेरे को जो जरूरत है वो उसको आती होती. If I can collaborate like this, I tell you, I can go and talk to him and I'll tell him that I'm good at this. Do you need this? And they will say, yes, why not? I had been there to VNIT and said, okay, sir, NEP चा माझा कोणताही विषय द्या, माझा रेडी आहे. तो हा येस सर, NEP चा आम्हाला खूप कंपल्सरी केला आहे, सेशन्स घ्यायला, तुमचा ॲड्रेस, तुमचा फोन नंबर द्या सर, मी तुम्हाला बोलवत जाईन. I have taken several sessions of NEP in VNIT, whereas that is a cream national institute. I have taken workshops and courses in IIM Nagpur. ये क्यों होता? क्योंकि उनको क्या चाहिए और मेरे को क्या चाहिए, इसका गिव एंड टेक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बैलेंस अगर मैंने कर लिया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. लिस्ट आउट कॉमन इंटरेस्ट, वो सामने वाले का आदमी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो भी है, उससे हमको वी नीड टू स्टडी थोरोली. 8-10 दिन गूगल करना लीजिए, 1-2 उनके जूनियर लोगों से बात कर लीजिए, उनके बॉसेस से बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि उनकी गरज क्या है और वो गरज में मेरा कहाँ बैठ रहा है और मेरी गरज क्या है वो उसमें बैठा. अगर ये हमने सीख लिया ना, तो आउट ऑफ दैट आई एम हम्बल. आई एम टेलिंग यू, मैं अपना बोस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ. इट इज लाइक आई कैन बी सीनियर मोस्ट अमंग मोस्ट ऑफ यू. 2-4 मेरे से सीनियर हो गए भी. आई हैव लाइक 34 years एक्सपीरियंस. तो हो सकता 34 वाला अपने ऑडियंस में ना भी हो, बट आउट ऑफ दैट, सो आउट ऑफ सीनियरिटी ऑल्सो आई कैन टेल कि या ये जो मैंने चालू किया काम, 2016 आई स्टार्टेड दिस थिंग,
Till now, I'm working with 14 world-class European universities. Berlin, Valencia, Spain, Croatia, Germany, Edinburgh, Scotland, Norway, Riga, Latvia. कहाँ नहीं गया हूँ? ये सारी कंट्री आई हैव पर्सनली ट्रैवल्ड, नॉट ओनली अलोन बट विथ माय फैकल्टी, रिलेवेंट फैकल्टीज. 14 वर्ल्ड क्लास है ये, जिनको क्यूआई रैंकिंग है. स्कॉटलैंड का एडिनबरा का स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल टॉप 5 में है वर्ल्ड के. तो ये सारी टेक्निश यूनिवर्सिटी बर्लिन 400 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी विद सो मेनी नोबल लॉरेट्स पास्ड आउट. उनके आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट के साथ हमने 3 साल काम किया है. So the point is, like when we understand the strength and weakness match between two partners, between two professors, between two departments, then everything is possible. So 14 world-class European universities I have visited personally and working with them. 5 from Israel, not after war, just before war. 2016 to 19, I have worked with 5 universities in Israel very closely. I've been frequently visiting to Israel. Tel Hai, Tel Aviv, Haifa, Jaffa, Saknin, Herzliya. ये मेरे फेवरेट थे सब यूनिवर्सिटी, जहाँ कितना जाता था मैं. एंड दे हैव आल्सो विजिटेड माय इंस्टीट्यूशन. सो 5 इजराइल यूनिवर्सिटी, इनके साथ मैंने दे आर इजराइलीज आर अमेजिंग इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, दे आर आउटस्टैंडिंग इन एग्रो टेक्नोलॉजी, एंड दे आर अमेजिंग इनटू दिस थिंग एंटरप्रेन्योरशिप. आउटस्टैंडिंग. नेपाल, 4 नेपाल यूनिवर्सिटी के साथ आज भी काम हो रहा है मेरा. आज भी, अभी मैं लास्ट वीक, मैंने 1.5 महीने पहले मैं आई वॉज इन नेपाल फॉर 9 days एंड आई वर्क विद देम. नेपाल आपल्याला वाटतं खूप गरीब कंट्री है, नेपाल अनडेवलप्ड है, सब सही है आपका. अपने रुपए की कीमत उससे कम है वहां पे, उनके रुपए की. उनके यहाँ लिटरली रास्ते नहीं है, खाने पीने के लाले, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास. तो उनके पास तो हमको जाना ही चाहिए. आई हैव बीन वर्किंग विद पोखरा यूनिवर्सिटी एंड काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस. अमेजिंग यूनिवर्सिटीज है यार, करोड़ों की ग्रांट्स है उनके पास, यूएस की, यूरोपियन कंट्रीज की. उनके साथ में 4 साल से काम कर रहा हूँ. 4 ऑफ इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज आई हैव बीन वर्किंग, 3 फ्रॉम किर्गिस्तान. किर्गिस्तान तो इट्स अ बड़ा ब्यूटीफुल कंट्री है. आई मीन इट वाज लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया. इतना खूबसूरत कंट्री है, पर वहां पे भी 3-4 यूनिवर्सिटी जबरदस्त है. वहाँ इसेकुल यूनिवर्सिटी है, वहाँ टोकमोक यूनिवर्सिटी है, वहाँ बिश्केक यूनिवर्सिटी है. ऑल दिस यूनिवर्सिटी वी हैव पर्सनली विजिटेड, and then Indian partners also. So, the point I want to put across is interdisciplinary, collaborative, international, interstate, intercity, inter-university, inter-word बहुत important है यार. You need to collaborate and so on. These are the universities I have been working. Algebra University in अभी recently गया था मैं स्पेन में, वैलेंसिया में. So Valencia is such a beautiful country, city. So near Madrid. क्या काम कर रहे हैं यार लोग वहां पे साइबर सिक्योरिटी पे. एवरी स्मॉलेस्ट थिंग एंड अ क्लास इज टेकिंग प्लेस विद कोलैबोरेशन ऑफ इंडस्ट्री. पूरा का पूरा कोर्स इंडस्ट्री पढ़ा रही है. क्या अमेजिंग काम हो रहा है. तो ये सब अगर है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यार, सी दीज आर आई हैव लर्न एंड वर्क विद द फॉलोइंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज. ये 14 हो गए और ये 28, अभी 30, अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज वी हैव बीन वर्किंग. और वो जो लर्निंग है ना, इतना फास्ट हो जाता, यू नेवर नो. एंड ये कोलैबोरेशन इतना फ्रूटफुल है. आई टेल यू एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ. इज पीयूष यूके, इज माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग student, but he had an interest and passion about medical science. And then he passed out from mechanical engineering from my college, Priyadarshini. And then he said, मेरे को तो मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेरे को डिजाइन में इंटरेस्ट है. उसको बहुत वेरिड इंटरेस्ट है. और उस टाइप की भी एक इंस्टीट्यूट है, हमको पता ही नहीं था. मतलब मैं भी इतना, जबलपुर यहाँ से 6-5 घंटे में है, बट आई नेवर न्यू देयर इज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की थी, जो इसको एकदम मैच कर गई. इसने वहां जाके पोस्ट ग्रेजुएट किया एंड देन ही टुक इंटरेस्ट इन ओनली ईएनटी, नाक कान घसा, और उसका 3D प्रिंटिंग में मजा आने लग गया. तो क्या करता था वो, नाक कान घसा वाले डॉक्टर्स के साथ जाके बैठता था. वहां पे जो भी उनके पास MRIs आते थे, सिटी स्कैन्स आते थे ऑपरेशन के लिए, ट्यूमर्स एंड कैंसरस ग्रोथ एंड ऑल दो, उसमें इसको मजा आने लग गया. देखो मैकेनिकल इंजीनियर था, पर डिजाइन में मजा आता था, मैन्युफैक्चरिंग में मजा आता था, 3D टेक्नोलॉजी में मजा, 3D प्रिंटिंग करने में मजा आता था. आर्टिफिशियल ऑर्गन प्रिंटिंग नाम का करियर उसने अपना अडॉप्ट कर लिया और ये सब डॉक्टर्स के साथ टाई अप किया. आज उसके 3-4 स्टार्टअप्स हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, नागपुर में है. 3-4 स्टार्टअप है. ऑर्गन प्रिंटिंग, सिमुलेटेड प्रिंटिंग करके दे रहा है. यानी डॉक्टर हैज टू प्रैक्टिस बिफोर ही एक्चुअली गिव अ कट टू अ पेशेंट एंड ही में देयर आर चांसेस लाइक 10% चांस कि वो फेल हो जाए. अब वो ऑलरेडी एक प्रिंटेड ऑर्गन सेम क्वांटिटी क्वालिटी का
और साइज एंड शेप एंड डायमेंशन का, वो एक प्रिंट आउट ले लेता है, उस पर डॉक्टर पहले 2 बार कट करता है, एंड देन फाइनली व्हेन ही डज एन ऑपरेशन ऑफ एन ओरिजिनल पेशेंट, ऑल द चांसेस दैट इट्स 100% सक्सेस। तो इंटरडिसिप्लिनरी बोर्ड बराबर पैसा आ जाता है। ये हमने एक प्रोजेक्ट किया था, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। सो R&D, हमने डी पे जब फोकस करना चालू किया तो समझ में आ गया कि यार ये तो पेपर तो ऐसे 10-20 निकलते, और पेपर के लिए करने जाओ तो पेपर रिजेक्ट हो रहा 3 बार, फिर पैसे दे रहे, फिर पेड जर्नल, फिर 15,000 20,000, क्योंकि फोकस पेपर है। फोकस रिसर्च रहेगा तो पेपर के अपने आप होंगे, नहीं भी हुए तो रिसर्च भी बता दो मुंह से, रिजल्ट दिखा देना, बोलेगा ये 10 पेपर के बराबर है। सो आई वॉज इन टू वन ऑफ द रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस. I was chief guest for Research Methodology International Conference at one of the central government laboratory, NIMH. तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो WCL के जनरल मैनेजर थे हमारे नागपुर के, मिलिंद माने सर थे, डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर है। लोकेंद्र सिंह जी थे, हमारे इसके सिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। ऐसे हम लोग बैठे थे, भाषण वाषण सब हो गया, एंड देन वी वर हैविंग कॉफी, एंड देन वी वर जस्ट डिस्कसिंग। तो बोले कि यार ये इतना भयानक है, कोल्ड डिसीज, ये ब्लैक लंग डिसीज हो जाता है सारे वर्कर्स को। कोल वर्कर्स के जो माइंस के जो माइनर्स काम करते हैं ना, अंदर जाते हैं ओपन कास्ट में, तो वो नैनो साइज पार्टिकल रहता है धूल सा, वो कोयला अंदर इनहेल कर लेते हैं, और उसमें का आयरन पार्टिकल जाके लंग्स में बैठ जाते हैं, और वो लंग्स ब्लैक हो जाती। ब्लैक लंग डिसीज इज इक्वली डेंजर एज दैट ऑफ कोरोना, और आई शुड से लंग कैंसर। 5-7 साल काम कर लिया मजदूर ने, तो उसको ये चीज हो जाना है, और वो मरना ही तय है उसमें, और उसका रिपेयर कुछ नहीं, उसकी ट्रीटमेंट ढंग की नहीं होती, वो मर जाता बेचारा, उसको 6-7 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देके उसकी स्टोरी एंड्स। कितनी भयानक प्रॉब्लम है। जब हमको ये समझा तो मैं बोला सर हमको दो ना काम, मेरी आदत है किसी ने कुछ जो बताया मेरे को, सर हमको दो ना काम। क्लास क्या बैठे टीचर, मैंने बोल दिया सर हमको दो ना, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, काय करूँ ना सर मदद। तो बोले अरे करो, बाप रे आप बोल रहे तो मैं तो अभी देता, बोले आप करो। तो फिर लोकेंद्र सिंह बोले नानोटी सर आपको जो मदद लगी मैं कर रहा हूँ, मेरा पूरा हॉस्पिटल आपके साथ है, चलो ये WCL साथ में, चलो NIMH, ऐसी बातों बातों में निकला 4 लोग हम पार्टनर बने, चलो मिलके, बोला समझ तो लेते क्या फंडा है। समझा, किया, 4-5 मीटिंग में, यू विल नॉट बिलीव, हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम हो सकता है, रैट्स पे हो सकता है, इसको पहले गिनी पिग के साथ किया जा सकता है, इसको फार्मेसी की मदद ली जा सकती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लंग सैंपल स्टडी किए जा सकते हैं, उसमें कोल सैंपल स्टडी किए, पूरा हमने एक प्लान बन गया। हमके बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर एकदम एक्सपर्ट होते, उनके पैथोलॉजी जो थे राजपाल कश्यप सर डायरेक्टर वहाँ के, वो बहुत अच्छे थे। ऐसा सब स्टोरी बन गया, और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट हो गया, और फिर हमने WCL को बोला भाई आपका हम काम कर रहे हैं, हमको पैसे तो लगेंगे। मैंने मेरे प्रोफेसर्स को पूछा कि यार ये सब तुमने प्रॉमिस तो कर दिया, इसकी इक्विपमेंट है क्या, बोले नाही सर इक्विपमेंट नाही आपल्याकडे, काम करू शकतो, तुम्हाला कितने का इक्विपमेंट है, बोले 30 लाख रुपए के लगेंगे, तो बोला मांग लो उनसे ही 30 लाख रुपए। तो ऐसा करते करते हमने 90 लाख का प्रोजेक्ट बनाया, 90 lakhs ओनली। एंड देन व्हेन वी कॉल्ड CMPDI में प्रेजेंटेशन को जाना था, तो CMPDI सेड प्लीज रिमेंबर वी कैन नॉट पे यू मोर देन 10 CR। तब हमारी आंखें खुली, और 10 करोड़ की बात हो रही है, और हम निकाले 80-90 लाख। फिर हमने 4-4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट क्रिएट करके 4-4.5 करोड़ का भेजा, तुरंत 1.25 करोड़ हमको सैंक्शन होके वहां गए, हमने खर्चा भी कर लिए, हमारे पास एक अच्छी एडवांस लेबोरेटरी क्रिएट हो गई, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ गए। तो ये क्या हो गया कि मेडिकल एंड माइनिंग इंजीनियर्स एंड WCL और सेंसिटिव एंड सोसाइटी ला यूजफुल, ये जितने कंपोनेंट उसमें आप डाल दो ना, तो फिर करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें कितने रिसर्च पेपर और पेटेंट्स, क्या 3 PhD हो जाते इसमें, ये काम में। तो फोकस PhD नहीं, काम होना चाहिए, फोकस रिसर्च पेपर नहीं, काम होना चाहिए, फोकस पेटेंट नहीं, काम होना चाहिए। काम पे फोकस कब होता है, जब वो यूजफुल रहा, तो नहीं तो मन ही नहीं लगेगा ना। if the focus is not work, then it will not happen. So similar, हमने फिर एक बार ICMR की ग्रांट, हमको बहुत अच्छी ग्रांट मिली है, Indian Council of Medical Research, all 35 institutions were medical institutions, we were only engineering college, so they got excited, अरे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हमारे पास आगे पैसे मांगने के लिए, क्या है देखो चलो स्टडी करो। एंड वी वर दी ओनली इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट हु गॉट एंटायर ग्रांट। तो ICMR ची पण ग्रांट मिळाली। बैद्यनाथ वाल्यांशी ऐसी कॅज्युअल बात हो रही थी, बोले आमच्याकडे असं आहे, म्हटलं सर आम्हाला काही काम द्या ना। ते सेड अरे कम डाऊन, टुमॉरो फॅक्टरीत आहे, असे म्हणजे लग्नात भेटले का मला, म्हणजे मी डायरेक्टर R&D आहे बैद्यनाथचा, म्हटलं अरे मी पण डायरेक्टर आहे, आमच्याकडे एवढं आहे रे, अरे बोले आओ ना, बोले मिलते ना, मैं बोला मैं कभी आया नहीं बैद्यनाथ इतने नागपुर असून, बोले कल आओ। आई सेंट माई PhD स्टूडेंट्स फर्स्ट, मेरा मीटिंग था, तो वो बच्चे बोले हमारे PhD स्टूडेंट 3 जन जाके बोले सर इतना चिल्लर काम है, हम तो आराम से 8-8 दिन में करके देंगे, आप उनको काम मांग लो। मैंने उनसे मीटिंग की, काम मांग लिया,
हमने उनका काम करके दिया। जो काम वो 1 लाख 2 लाख रुपए पूना से करवाते थे वो हमने सस्ते में करके दिया नागपुर में। तो बैद्यनाथ के साथ भी कोलैबोरेट हो सकता है, डब्ल्यूसीएल के साथ भी कोलैबोरेट हो सकता है। वो सीएमपीडीआई को पैसे मांग लिया तो वो 2 करोड़ दे सकते हैं। पॉइंट है, अरे हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स के ब्रोशर में फोटो छापे इन्होंने, बैद्यनाथ वालों ने, कि देखो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के पीएचडी स्टूडेंट्स ने भी हमारा इतना अच्छा काम कर दिया। तो पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, कोलैबोरेटिव, ये वर्ड्स इतने मायने रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आई हैड बीन टू इजराइल, हर्जलिया लैब में गया था, आईडीसी नाम की एक यूनिवर्सिटी है वहां पे। उस यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स थे, अभी तो उसको पूरा रिचमन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए हैव टेकन ओवर एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज रिचमन यूनिवर्सिटी, रीनेम्ड एज दैट। बट वहां के डिपार्टमेंट के नाम देखो क्या है, आई म्यूजिक, ये डिपार्टमेंट का नाम है। उसमें यूजी पीजी पीएचडी मिलता है। ऑडियो टू टच डिवाइस, म्यूजिक एनहांसमेंट एंड न्यूरो वेलनेस, अरे ब्रेन कॉग्निजन एंड टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट का नाम है। ब्रेन लैब डिपार्टमेंट का नाम है। आई मीन, you will not believe, if there are 15 faculty in that department, all 15 have different qualifications. ब्रेन लैब में गया तो मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड कौन, केमिस्ट एंड बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, अरे और डॉक्टर और एमबीबीएस, 15 लोग 15 क्वालिफिकेशन के थे। आई म्यूजिक में गया वैसे ही, ऑडियो टू टच डिवाइसेस में गया वैसे ही, म्यूजिक एनहांसमेंट, तो न्यूरो वेलनेस, ऐसी लेबोरेटरीज और ऐसी ऐसी डिग्रीज और डिप्लोमास और डिग्री, अमेजिंग रिसर्च, दे बिलीव ओनली इन इंटरडिसिप्लिन एंड देन वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ। देखो मेरे को, मेरा इंटरेस्ट है एक्स है, पर मेरे को X+2 में अगर मेरे को अच्छा गवर्नमेंट को गरज है, एनजीओ को गरज है, तो मेरे को मोल्ड होना भी जरुरी आहे। माझं एक्स मध्ये इंटरेस्ट आहे, मेरा लर्निंग पॅशन आहे, मी ठरवलं होतं की बाबा एक्स मध्ये काम करायचं, पण X+2 जर करावं लागलं, समजा X-2 कराओ, थोड़ा सोड़ा लगेगी, थोड़ा चेंज, थोड़ा डाइवर्ट होना पड़ेगा। अगर होना है हल्का सा डेल्टा वी तो पूर्ता, क्योंकि उसके बाद उसमें पैसा है ना, उसमें पैसा है, मदद है, कोलैबोरेशन है, एक्सपर्टीज अवेलेबल है, तो थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए, फिर अपने मुद्दे पे भी आ जाए। मैं तो हर साल देखता हूँ कौन सा हॉट टॉपिक है दुनिया में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, वो अप्लाई कर दिया, उसमें 54 लाख मिल गए। ग्रीन इकोनॉमी 54 लाख लिखा है मैंने, अभी मेरे को 70 लाख मिल गए उसके। फेक न्यूज में काम किया, CS फॉर ऑल में काम किया, बट AICT वगैरह तो आपको 2-4 करोड़ तो कितने भी ले सकते हैं आप वहाँ से, पर वो क्या चीज़ है कि डेवलपमेंटल दी है, ये एक्चुअल आपको काम करने के लिए पैसा मिलता है, ट्रैवल के लिए मिलता है। सो यू नो, डिसॉल्व द बाउंड्रीज एंड यू कैन डू दिस। आई एम प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, आई एम डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब काम इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर माचे करके मेरे दोस्त ने पार्टनर है, और वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। किस कॉलेज में कर रहा है, वार्सो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंसेस में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर। वी आर कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग ऑन दैट कोलैबोरेशन, वी आर वर्किंग ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो पॉइंट वो है ही नहीं, कि पॉइंट है मुद्दा बेस्ड, ग्रीन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने फिजिक्स किया कि मैथ्स किया, दैट डजंट मैटर। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आई विल डिस्कस, दैट इज रिसर्च रेजिलियंस। रिसर्च के बारे में हमने बहुत कुछ बोल दिया, रिसर्च के अप्रोच देख लिए, रिसर्च के टाइप्स ऑफ रिसर्च देख लिए हमने, रिसर्च के कोलैबोरेटिव और ये सब देख लिया। बट एक और पॉइंट मेरे अभी रिसेंटली मेरे काम में आया, I heard from one of my collaboration friends in Sri Lanka. She told me that, Dr. Vivek, have you heard about research resilience? Do you do something on research securities? And I said, I don't do this. I understand the security of research means I have published my paper, means I have patented it, I have copyrighted it. IPR के आगे जाके रिसर्च की कोई सिक्योरिटी रहती है, मेरे को तो मैंने सुना ही नहीं था। After being 30 years into research, she said, oh, Vivek, this is very hot topic these days. I'll connect you to one of my friends, Kelly Russell, who is professor in United States. तो वो यूएस की केली रुजल, ये देखो, ये जो है व्हाइट सूट है, शी इज केली रुजल। आई हैड अ जूम मीटिंग विद केली रुजल, और मैं बोला कि यार हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। बोला, आई कैन कम डाउन, यू डोंट हैव टू वरी, वी विल फंड यू अकॉर्डिंगली। और हमारा एक बेहतरीन, हमको अच्छे 25-30 हज़ार डॉलर, US डॉलर की ग्रांट मिली। जितने पार्टिसिपेंट को हमने वर्कशॉप कराया उनको भी बहुत हैंडसम रेम्यूनरेशन मिला। हमारे कुछ 4 लोगों को उन्होंने उनके ट्रेनिंग पैनल पे ले लिया, मैं भी उनके ट्रेनिंग पैनल पे हूँ। और फंडिंग एजेंसी कौन थी, US स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब जिसमें US डिफेंस भी आता है, उनका CRDF ग्लोबल करके एक कोलैबोरेटिंग एजेंसी, जैसे अपना DBT DST है, वैसा CRDF ग्लोबल है। वो स्टेट डिपार्टमेंट, US स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। वहाँ की वो पर्सनल, वहाँ की वो सीनियर मैनेजर भी है, वो जो प्रोफेसर है केली। She personally came, brought another 2 professors from there, one professor from this Gaurav Tyagi,
ये है, ये गौरव त्यागी दिल्ली के है। दिल्ली जेएनयू में एक स्पेशल एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है रिसर्च रेजिलियंस के लिए, जो हमने कभी काम ही नहीं किए थे। तो कोलैबोरेशन के फायदे ये सब है। सो वंस यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग यू कम टू नो ऑल दैट। These three professors came all the way from US and Delhi, अपने खर्चे से आए। मतलब उनको 10 लाख रुपए खर्चा हो गया, वो तो उन्होंने खुद ही किया, और 5-10 लाख हमको मिल गया अलग से। और हमारा नागपुर में नाम हो गया, क्योंकि नागपुर में हमने फर्स्ट टाइम रिसर्च रेजिलियंस एंड फोर्टिफाइंग रिसर्च सिक्योरिटी पे इंडियन एकेडमिक के लिए क्या रोल प्ले हो सकता है, ये हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया यहाँ प्लेटफॉर्म। And now we are into the talks with that Kelly, and then she was so happy. She was here for 5 days in Nagpur, और इतना एक्सक्लूसिव मीटिंग हुआ, इतना एक्सक्लूसिव रिसर्च की टॉपिक पे डिस्कशंस हुए, पैनलिस्ट हुए। शी वांटेड मी आल्सो टू डिलीवर। तो मैंने पढ़ाई की पहले 15-20 दिन, उसने मेरे को डॉक्यूमेंटेशन भेजे पूरे, और मैंने भी खुद वहां डिलीवर किया रिसर्च सिक्योरिटी पे। पहला लेक्चर मेरा हुआ, दे पेड वेरी गुड। सो ये कैसा होता है, इट इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, इट इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंस इन टू इट। सो लाइकवाइज आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। आई फील लाइक आप भी करो। ऐसे ऐसे कंट्रीज में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी के नाम मेरे को याद नहीं आती। अभी अल्माटी में था, अभी कहीं कहाँ था, कजाकिस्तान में था, अभी यू नो व्हाट इज दैट, रशिया में था, सेंट पीटर्सबर्ग में मेरा लेक्चर हुआ अभी रिसेंटली। तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अपने को कहाँ, आई एम स्किपिंग दिस फ्यू थिंग्स, अभी टाइम हो गया। But the point is, unless you get in touch with society, unless you get in touch with people, industry, हजारो प्रॉब्लेम वेगळे पडले आणि हजारो लोकांना काम करायचं आहे। ये प्रॉब्लम करो, ये प्रॉब्लम से प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट करो, तो पैसा ही पैसा है। एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड पैसा है वो है, और वो पैसा अगर रिक्वायर्ड लगाओ तो रिसर्च की क्वालिटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। और वो अगर रिसर्च की क्वालिटी 10 टाइम्स बढ़ेगी, तो यू आर डूइंग 3-4 साल वैसे भी डालना है ना पीएचडी में, तो कहीं तो भी यूजफुल वाला काम कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते, उसके ऊपर पढ़ाई कर लेते, उसको सोच लेते, समझ लेते, एंड देन यू विल कैरी आउट दैट रिसर्च, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। प्लीज रिमेंबर, कीप टेकिंग ट्रेनिंग्स। गेटिंग ट्रेनिंग इज माई हॉबी, आई कीप डूइंग ट्रेनिंग्स। अभी तक मतलब 6-7 हज़ार लोगों को मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप दे चुका हूँ। एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी तो 50 कॉलेज में 10 हज़ार से ज्यादा टीचर्स को दे दिया है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की मॉडल की देखो, आप पढ़ो तो मतलब नहीं आता, पढ़ाने में मतलब आता है। यू नो व्हाट, हाउ आई स्टडी। एक ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नया मिलता है, मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ने के लिए। पर पढ़ना है ना, मेरे क्या करता हूँ मालूम, नोट्स नहीं निकलता। आई क्रिएट अ एम्प्टी पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट स्लाइड्स, एक पीपीटी पहले ऑन कर देता हूँ वो नाम से, और वो पीपीटी में ही कट पेस्ट करता हूँ। मेरे को जो जो अच्छा लग रहा है, जो जो नोट्स बनाना है, कहीं का मैटर उठा के डालना है, कोई फिगर अच्छी लग गई, मैं क्या करता हूँ, वो सारा चीज पीपीटी में भेजता हूँ। तो यू विल सी ऑलवेज माई लैपटॉप, इफ यू चेक, देर आर ऑलवेज 4-5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिनिमाइज फॉर स्टडी। तो मैंने वही सोच लिया कि यार, पढ़ने में ना अपना टॉपिक कंफर्म नहीं होता, पढ़ने के बाद पढ़ाओ तो असली मजा आता। सो आई ऑलवेज डू दैट। आई ऑलवेज रीड लॉट ऑफ थिंग्स, आई स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने पिछले 5-6 साल में कम से कम 20 से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, फिजिकली ट्रैवलिंग टू दोज कंट्रीज। तो वो सब पढ़ लिया, लेकिन वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते ही नहीं, मैं वो पीडीएफ वगैरह में कट पेस्ट करके वो फोल्डर में डालते ही नहीं। आई क्रिएट स्ट्रेट वे कि ये टॉपिक अगर मेरे को लोगों को पढ़ाना है और लोगों को इस पे सेशन लेना है, तो मेरे को क्या ट्रीटमेंट से समझाना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज हैव 4-5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिनिमाइज। अभी रिसर्च सिक्योरिटी पर इतने दिन चला मेरा, 15 दिन, लेकिन मेरे को मौका मिल गया 50-60 टीचर को सिखाने का। एंड देन आई वेंट थ्रू ऑल दैट प्रोसेस। कितने सारे भलते भलते टॉपिक पे सेशंस ले चुका हूँ। क्यों ले सकता, क्योंकि पढ़ के फायदा नहीं रहता, पढ़ाना जब रहता है ना तो आदमी प्रेशर में रहता है। सो वी ऑल टीचर्स ऑफ कोर्स वी नो दैट वी डिड पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, हमने सब कर लिया, लेकिन जिस दिन क्लास में जाना है, वही खास करके पोस्ट ग्रेजुएट की अगर क्लास में जाना है, बच्चे सिंसियर है, तो ऑब्वियसली हमको प्रेशर रहता पढ़ाई का। और वो जो पढ़ाई करते हैं ना, हम पढ़ाने के लिए पढ़ाई की जाती है ना, वो बहुत ही रिवॉर्डिंग रहती है। Thank you so much, all of you, for being wonderful audience, and I'm open for questions. I am reachable on all social media. You can connect me on any of these social media like Facebook, Insta, LinkedIn. कहीं पे भी। I have 27,000 followers on LinkedIn. I have 7-8,000 followers on my Facebook and whatnot. And I mean, it works like anything. So if you want, we can get in touch with them. So
That's all I wanted to say. If you have any questions, I am open for questions. I'll stop presentation. So thank you so much. Over to coordinator. If you have any questions to Sir, be asked, and ask, you can switch on the mic. You can talk generally. sir, excellent presentation, sir. Yes, yes. Thank you. And you are also encyclopedia, sir. No, no, no. That is not It's good. a Yes, sir. great compliment. Just Okay, no. yes, sir. My question is that, sir, just you are capable enough and you stayed in India, but I'm thinking about the brain drain, the problem of brain drain in our country. Yes, that is the biggest What is problem. your take? Yeah. एनईपी का मूल उद्देश्य ही वो है। जिसके पास 5 लाख है वो बेचारा 15 लाख लोन लेके 20 लाख सिंगापुर में भेज रहा है। ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम है कि हम क्वालिटी नहीं दे रहे ना। अब अपने आप को बहुत अच्छा बोलना, आम्ही तक्षशिला नालंदा आम्ही जगत विश्वगुरु होतो आज नहीं है ना। आज भी आप नाही पण देखो, आप पहले नाही माझं म्हणणं आहे सर, माझं म्हणणं आहे की ब्रेन ड्रेन होतो आहे, आपल्याकडे टॅलेंट नाही असं नाही आहे, ते चांगले इंजिनियर डॉक्टर सर्व होत आहे ना, आपल्या एज्युकेशन सिस्टमनी झालेले आहे, परंतु बहुत ते अच्छे आपला देश सोडून जाऊन राहिले. ते एक आपल्याला रिसर्च करण्याची गरज आहे, त्यामध्ये रिसर्च डेव्हलपमेंटची गरज आहे असं मला बिल्कुल वाटतं. बिल्कुल है, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडेल अलाउ नहीं कर रहा ना। अब अगर R&D में तुम्ही विचार करा, 0.69% ऑफ जीडीपी जर गवर्नमेंट खर्च करता है, तो जो साइंटिस्ट को बाहर 1.5 करोड़ रुपए पगार मिलेगा इंडियन करेंसी में, उसको तुम यहाँ 20 लाख में रख रहे, वो कितने दिन काम करेगा 20 लाख? म्हणजे मी त्याचा उद्देश सांगतो, म्हणजे जो भागता है इंडिया से ना, त्याचा हा ऑब्वियस ये है ना, वो सोचता है यार वहां पे तो मेरे को 50 लाख सैलरी यहाँ से ज्यादा है, प्लस वहां पे अगर मेरे को थोड़ा सा महत्वाचं काही काम करायचं आहे, युरोप में बैठा हूँ, अमेरिका जाना है, 2 मिनटात ट्रॅव्हल सँक्शन हो जाता है, 5 मिनटात हे सगळं होत आहे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एंड वर्क कल्चर ऑल्सो बहुत डिफरेंट है, इतकं भयंकर है। मैं तो प्राइवेट कॉलेज में हूँ, थैंक गॉड कि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। गव्हर्नमेंट में तो मैं सुनता हूँ VNIT की वगैरे 2 वर्षातून एकदा फॉरेनला जायचं, आणि जायला कमीत कमी इथून पासिंग तिथून पासिंग, ह्याचं अप्रुव्हल त्याचं अप्रुव्हल, दुनियाभर की स्टोरी। मागच्या वर्षात तुम्ही वर्षभरात 25 सुट्ट्या झाल्या, मेरी तो साल की 3 महीने छुट्ट्या होती। अरे पण काम कर रहा हूँ ना मैं, वहां जाके भी काम ही कर रहा हूँ, इथे इथे माझ्या केबिन मध्ये बसून मी काही काम करीन त्यापेक्षा तर कधी बेटर काम करीन फ्रांस में जाके, जर्मनी में जाके, प्लस कॉलेज को कुछ फायदा हो जाएगा। तो माइंडसेट का इशू है, वर्क कल्चर माइंडसेट इंडियात खूपच प्रॉब्लेमॅटिक आहे। तो वो क्या होता की ते एक आहे, आणि ऍक्च्युअल जेव्हा लोक एज्युकेशन कम्पेअर करतात ना, जसं इंडियातलं एमटेक नागपूरचं करा इंजिनिअरिंग नंतर, आणि जे MS करतात ते क्वालिटी यूनिवर्सिटीज है, फॉरेन में भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है और बहुत फालतू यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं। I tell you, there are hundreds of such universities which are specially made फॉर एशियन स्टुडंट, की उनको भरभरा के ऍडमिशन ले लो, 50, 60, 70 लाख उनसे फी ले लो, एकदा एवढा खर्च केल्यावर तो इंडियात येऊन ते पैसेच नाही भरू शकत। सो इंडिया इज अ पुअर कंट्री ऑफ रिच पीपल असं मी म्हणतो। कंट्री पुअर आहे, बापरे एवढं लोन आहे, एवढं भानगड आहे, हे सगळं पैसे नाही, पगार कमी। इंडिया इज अ पुअर कंट्री बट ऑफ व्हेरी रिच पीपल। हे खूप ट्रॅजेडी आहे। किती माहिती आहे काय बजेट आहे मागच्या वर्षी 23-24 NEP लागू झाल्यावर फक्त 1.2 लाख करोड इंडियन एज्युकेशननी बजेट दिलाय, 1.2 लाख करोड। आणि फक्त आपल्या इंडियातून आपल्या मुलांना अमेरिकेत, फक्त अमेरिकेत MS करायला पाठवलं तर त्यांची जी फी दिली आपण, म्हणजे इंडियन माबापने अमेरिकन फॉरेन युनिव्हर्सिटीज को जो MS साठी जी फी दिली ती 1.5 लाख करोड आहे। सोचो आप, जे काही 2-3 हजार मुलं गेले अमेरिकेत, वो 2-3 हजार बच्चे को अगर यहीं पढ़ा देते थे, तो पूर्ण इंडियाची एज्युकेशनची जेवढी इकॉनॉमी नाही त्यापेक्षा जास्त तर आपले पॅरेंट्सनी तिथे पैसे पाठवून दिले। इतना ब्रेन ड्रेन की सोचो मत आप, पैसा सोचो कितना भयानक हमारे देश से चले गए। जेवढं पूर्ण बजेट इंडियाचं एज्युकेशनचं वर्षभराचं आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त बजेट फक्त ते 2-3 हजार पॅरेंट्स होते इंडियातले, ज्यांनी आपल्या मुलासाठी खर्च करून टाकले। ही ट्रॅजेडी आहे, हे मॅचच नाही होत कुठे, नहीं इसलिए वो बरोबर है ना सर। मिसमैच। नहीं, एजुकेशन लोन लेके भी भेजते हैं बच्चों को, और वहीं पर यस, उनको ऑनलाइन लर्न का स्कीम भी वो लोग फॉलो करते बच्चे, और वहीं पर रह जाते, उतना पैसा तो रिकवर भी कर रहे सर वो लोग, यहाँ का लोन रिपेमेंट कर रहे हैं वो लोग। हा वो कर रहे ना, पण तो पैसा आज लोकांजो तयार आहे,
और उतना पूरा कंट्री का एजुकेशन होता है सर। 1.25 लाख करोड़ मध्ये काय होतं? फिर उसमें पगार हो गए, उसमें ग्रांट्स हो गए, उसमें रिसर्चला लागलेला खर्च सगळं झालं ना तेवढ्याशा ह्याच्यात, जिसमें होता ही नहीं. दैट इज द पॉइंट. Yes, sir. वो प्रॉब्लेम है. Yes, Dr. Thank you, Yogesh sir. sir, you Yogeshwar, want to say? सर तुम्ही आज जे उघडलंय म्हणजे प्रचंड मोठी पेटी तुम्ही उघडली सर, आणि त्यातनं तुम्ही आम्हाला जे सोर्सेस सांगितले की वेगवेगळ्या अथॉरिटीज असतील किंवा सोर्स असतील, सोर्स ऑफ मनी फंडिंग जे असतील त्यामध्ये आपण काय काय करू शकतोय. आणि तुम्ही तुमचे 2-3 आकडे पाहिले मी, तुम्ही अगदी फेक न्यूजचं अनालिसिस आपण जे करतोय आता त्यावर तुम्ही मला वाटतं 24-25 लाख रुपयाचा तुम्ही हो अं, हो. जो तो उचललेला आहे. म्हणजे डायमेन्शन्स किती आहेत की ज्यामध्ये आपण काम करू शकतोय आणि त्यावर आपण फंडिंग घेऊ शकतोय. मी हे यासाठी विचारतोय की अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट आमच्या पण काही काळात मी सादर केले होते. युजीसी मध्ये एक लॉबी अशी आहे, म्हणजे मी जे ऐकलंय ते खरं जर असेल की ती कुठल्याही त्यांच्या जवळच्या त्यांचा अप्रोच ज्यांच्यासोबत आहे त्यांच्या प्रोजेक्टला ती कदाचित महाराष्ट्रातील लॉबी असेल किंवा ती बिहारची असेल, कुठली तरी असेल, त्यांना ती मात्र फंडिंग करते आणि इतर मात्र अतिशय महत्त्वाचे जे रिसर्च जे असतात ते मात्र कुठेतरी मागं पडतात आणि त्याच्यामुळं मग रिसर्च जे आहेत हे पुढे जात नाही. हे कितपत खरं आहे सर? हे म्हणजे नहीं ये पा मुझे यूजीसी तो अपनी मैडम बैठी है यहाँ पे यूजीसी की एम्प्लॉई तो मैं उस पर कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, कारण आपणही सगळे तसे इनडायरेक्टली यूजीसीचे कन्सर्न लोक आहोत. पण काय होत आहे, यूजीसी सर देणार ते 5 लाख 3 लाख स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट, लेकिन उसके yes, अलावा डीबीटी आहे, डीएसटी आहे. यूजीसी मध्ये काय आहे तेच ते लोकांचं तेच म्हणजे मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट, ठीक आहे 10 लाखाचं काही 5 लाखाचं आणि 3 लाखाचं, उसमें हो सकता है लाइन होंगी, बहुत ज्यादा लाइन होंगी. और ऑब्वियसली जेव्हा इक्वली कॉम्पिटेंट 50 प्रोजेक्ट एक सारखे आहे, प्रोफेसर प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, तो कुछ ना कुछ तो उसमें यू नो कि मतलब मला 2 प्रोजेक्ट द्यायचे हैं, मैं जो 50 इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो कौन से 2 मैं सिलेक्ट करूंगा, इसमें जरूर कुछ ना कुछ फेवर भी हो सकता है, उसमें कुछ कनेक्ट हो सकता है, वो हो सकता है. पण माझं काय म्हणणं की मैं तो खैर यूजीसी में आज तक कोई स्कीम डाली नहीं, म्हणजे फ्रँकली स्पीकिंग यूजीसीला मी कोणती स्कीम टाकली नाही आहे. और मेरे को उतना पर्सनलाइज एक्सपिरियन्स नाही, पण आम्ही एआयसीटीच्या भरपूर ग्रांट्स घेतल्या आहे सर, तिथे काही असं मला कधी अनुभव नाही आला. एआयसीटीच्या मी म्हणजे गेल्या 4 वर्षातलं मी आता टोटल मला एक प्रेझेंटेशन द्यायचं होतं, तर माझ्या कॉलेजनी एआयसीटी कडून गेल्या 5 वर्षात 4.8 करोड ग्रांट घेतली आम्ही वेगवेगळ्या विषयांवर. म्हणजे कुठे 20 लाख मिळाली, कुठे 10 लाख मिळाली, कुठे 25 लाख मिळाली, कुठे आता 90 लाख मिळाली. आता मागच्या महिन्यात 90 लाख मध्ये 30 लाख एआयसीटी देते, 30 लाख इंडस्ट्री देते, 30 लाख कॉलेजला टाकायचं आहे. पण आयडिया लॅब क्रिएट होते सर 90 लाखाची, त्यात वाटल्या बोलून बोलून दिल्या सर लोकांना, कारण त्यांना टार्गेट होतं की आयडिया लॅब जोपर्यंत बनत नाही तोपर्यंत रिसर्च इनोव्हेशन होऊ शकत नाही. पण त्याच्यात त्यांना तुम्हालाही कॉन्ट्रीब्युट करायला लावलं. ते 30 लाखच दिले, 30 कॉलेजला टाकायला लावलं. पण हरकत नाही ना, म्हणजे एक सेटअप आयडिया लॅबचा तयार होऊन गेला. ते इन्क्युबेशन सेंटर चांगलं झालेलं. आज आमचं इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये 5-7 बिझनेस चालू आहे. त्याच्यात जर 50 आणायचे असतील ना मला, तर मेरे को जोरदार आयडिया लॅब क्रिएट करनी पडती. तर अशा खूप स्कीम आहेत सर. म्हणजे यूजीसीचा तुमचा प्रत्यक्ष अनुभव असेल तर मेरे को उस पर कोई कमेंट नहीं करना, पण मेरा जो अनुभव है कि वो अगर है या आउट ऑफ कंट्री तो पैसा वैसा तो कोई झंझट नहीं, अप्रोच ही नहीं चलता ना वहाँ पे. तुम्ही पोचणार कसं, म्हणजे मला 4-5 मोठे प्रोजेक्ट मिळाले आजपर्यंत युरोपियन युनियनचे. मी त्या बेल्जियमच्या हेडक्वार्टरला फक्त 2-3दा गेलो आणि ते बाहेर प्रेझेंटेशन देतो, सेमिनार हॉलमधून बाहेर येऊन जातो. मेरे को कोई पूछता नहीं मला, आणि मला एकही ओळखीचा नाही. तो डिपेंड करता है सर ऐसा, म्हणजे आय कॅनॉट डिनाय व्हॉट यू से, but there are ways and means and sources and funding agencies where you can pitch in. yes, sir. सर थँक्यू सर. Anyone else? Excellent presentation, sir. With, Thank as you so always, much live all of you for so explanations. many comments. Thank you all of you, thank you so It much. was a wonderful session, sir. Thank you. So friends, हम यहाँ पे रुकते हैं. I extend my heartfelt and sincere thanks to respected Dr. Nanoti sir once again for engaging wonderful session on a very important topic of research and development. Thank you so much, sir, once again on behalf of all the participants. Yes, yes. Thank you so much all of you, and my best wishes to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Thank you you, so sir. much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. थैंक यू फ्रेंड्स. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला है, देखा आप लोगों ने सभी ने कल के लिए. मैं एक बार यहाँ पे भी बता देती हूँ. डोंट लीव द मीटिंग. आई हैव सेंट वन मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर टुमारोज शेड्यूल.
कल दोनों सेशंस होने वाले हैं। पहला सेशन अपना 4 to 5:30 श्रेयस कुरेकर सर का होगा भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर, और दूसरा सेशन हमारे डायरेक्टर सर एंगेज करेंगे डॉक्टर सीजी देठे सर ऑन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और उसके बाद अपना इनफॉर्मल वैलिडिटी रहेगा, आप लोगों के थोड़े व्यूज हम जानना चाहेंगे कि कोर्स कैसे लगा। उसके बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं 2 एग्जाम का गूगल फॉर्म भेजूंगी जो आपको परसों तक एग्जाम सॉल्व करके देनी है, दोनों एग्जाम्स। और उसके बाद एक फीडबैक फॉर्म आपको फिलअप करना है कल, और उसके तुरंत बाद कल शाम तक या तो परसों मॉर्निंग तक आप लोगों को सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएंगे। तो कल आप सभी लोग अच्छे से अटेंड करिए, कल कोई एब्सेंट मत रहिएगा, कल का दिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी और कुछ इंस्ट्रक्शन है तो वो मैं कल बता पाऊंगी, लेकिन कल अपने दोनों सेशंस एंगेज रहेंगे 4 to 7 o'clock, और 7 बजे फिर आप लोग फ्री होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Okay, madam. Thank you. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम।